Good evening, everyone. So I request all participants to kindly read these instructions. We'll wait for 2 minutes. Participants will be joining from out of Maharashtra. Manmat Biradar sir, shall we begin the session? Yes, yes, we can start. No problem. O- Okay. Just we can just start. You just introduce whatever language तुम्ही विचारा, whatever Marathi, Hindi, English, which is better. No problem. We can just go for that. So I think we should go with Hindi because many participants will be joining from out of Maharashtra also. Yeah, no problem. Yes, sure, sure. Yeah, Hindi and English will be fine, sir. English. Yeah, Yeah. English. Hindi and English. Yeah, Sir, yeah, farmers are also there. yeah. No problem. Farmers are, yeah, okay. Okay, fine. So I'll start with the session now. Yes. Uh, I hope everyone has got the link in chat box or Google form. I think I will just paste that link if Oh, anyone is not having. I'll just yes. 1 minute. Huh? Okay, okay. Thank you, sir. Well, so good evening, one and all, respected dignitaries and all the members today present here in this function. I am training coordinator Omkar Nagode at Agriculture Training Institute, Ahmednagar. At first, now I would like to brief about our institute and our team. So, Agriculture Training Institute was started last year, mainly aiming on the trainings of BTech agriculture engineering students. But then we realized the importance of this digital education and started organizing trainings for farmers and agriculture related people. So farmers are able to gain this new knowledge in their own pace. So we covered many different topics like hydroponics, cold storage, honeybee rearing, dragon fruit farming, pest management, etc.
So till date, we have arranged more than 15 training programs for students and more than 25 training programs for farmers. So near about 18 to 20,000 farmers and 3,500 students are benefited from this institute. And ATI has gained attention from different states of India. So many of these programs were conducted in collaboration with private companies, government and semi-government bodies. Our mission is to provide top quality trainings, courses, visits, internships, etc. to farmers and students by eliminating the most probable barriers of physical presence, that too in very reasonable and affordable price. So, guys, everyone might be knowing since this pandemic started, everyone was suffering from the financial crisis and all those things. So, we came up with this idea to reach out to students and farmers to give them education from our experts. So, we collaborated with different Krishi Vigyan Kendras throughout the Maharashtra, and we started organizing the trainings. So all our trainings are organized by keeping in mind the current industrial scenario. We have team of experienced people in all branches of agriculture. We collaborate with academic experts, industrial experts, and trainers to provide top quality trainings to our learners. We are trying to fill the gap between students, academic institutions, industry, farmers, and experts, and arrange such daily, monthly, weekly lectures regarding academics, job opportunities, and career guidance. So I like to speak about my team. So basically, we are team of four members here. So Suyog Khose, he's director. He's pursuing PhD in IIT Kharagpur. Mangesh Mandge has completed his masters from IIT Kharagpur. Shreyash Kakal is chief technical officer here. I myself, Omkar Nagode, I have completed my MTech from IRI New Delhi. So, guys, this pandemic have resulted in introducing new system of education, of connecting people and working together. And using that, we are trying our best to utilize this system for educating students, farmers, entrepreneurs, and other associated group of people. So, this was about our institute. Now, I will like to move on to our today's session. So, digital startup ecosystems in agribusiness. So, guys, as we all know, career in agribusiness can seek into multitude of industries, including farming, real estate, retail marketing, food processing, food production, and farming industry. Agribusiness is an important field because agriculture related industry from farming and livestock to food production and human nutrition encompasses a significant portion of careers worldwide. So agribusiness opportunities are booming these days, and people are recognizing the potential of that. So many from diverse backgrounds and diverse professions are entering into agribusinesses. Many times, you have heard news. Many times we hear that young professionals entering into hydroponics, dairy industries, aeroponics, such kind of dragon fruit farming. So such kind of they are coming with new technologies and going for business opportunity. So agro startups are becoming popular in these recent years. So many digital startups have gained attention of farmers, and as we are in information age, so it has created a huge scope for digital startups. Now to discuss on the same topic, I will invite Mr. Manmat Biradar here. So to speak about him, he's a deputy general manager in Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited. He's placed at Mumbai, Maharashtra. So, to speak about him, he has 20 years of professional experience in providing solutions to customers, new dimensions to business areas, and solving the organizational problems. So, he is qualified senior management executive with experience in overseeing the daily activities of small business and large corporation alike, and excellent communicator also. So, he has also worked with Kirloskar Brothers Limited. He is food and agribusiness startup growth expert. He's putting efforts to transform the agribusiness entrepreneurship. He's also digital marketer, YouTuber, affiliate marketer, and he's doing marketing on different social platforms, using different social platforms.
So that was in brief about our institute and about our today's expert and our topic. So without taking much of your time, I would like to invite Mr. Manmat Biradar to take the session forward. Yes, सभी को लैंग्वेज कौन सी मतलब जो कंफर्टेबल है, आई थिंक हिंदी विल बी कंफर्टेबल फॉर ऑल. सो वी विल हैव अ डिस्कशन हिंदी एंड इंग्लिश. कुछ जनों को ऐसा मतलब हिंदी चलेगा, कुछ मतलब कोई मिक्स इंग्लिश तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. यस, कंफर्टेबल ऑल. यस. सो वी विल मेक दिस सेशन वेरी इंटरैक्टिव. सो पहले एक बार अपना चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में आप कहाँ से हो सब जरा प्लीज चैट बॉक्स में जरा टाइप करिए ना. आप कौन से सिटी से ज्वाइन कर मतलब है, जरा प्लीज मतलब मुझे देखना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से है. सो विल स्टार्ट द सेशन. ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे. चलो, कोल्हापुर आसद पाटिल, सुमित नाशिक से है, वाह वेरी गुड. तुषार जलगांव महाराष्ट्र, सांगली, बीकानेर, नाशिक. संदीप पिंपळकर नागपूर, लोणी. वाव वाव, बहुत बढ़िया. पूर्ण महाराष्ट्रातून म्हणजे मराठी मध्ये ठीक आहे, काही बाहेर पण असतील आपल्याकडे लोक. पनवेल, सांगली. व्हेरी गुड. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सायली पाटील, चंद्रकांत गवारे, सुमित जाधव, पंढरपूर. वाव व्हेरी गुड. गजानन, श्रद्धा, रिअलमी. रिअलमी म्हणजे ते मोबाईलचं नाव आहे. ओके. तेजस सुतार, राठोड, वाव छान, व्हेरी गुड. ऋषाली, विश्वासराव पुणे, शिर्डी, जळगाव. व्हेरी गुड. खूप छान, व्हेरी गुड. थँक्यू. छान वाटलं. सो नाईस नाईस ऑफ यू. वाशिम, वाशिम देवानंद किलारे. व्हेरी गुड. तर आपण सेशन स्टार्ट करूया मित्रांनो. जस्ट वी विल स्टार्ट द सेशन. मी आय विल स्पीक इन इंग्लिश. ऑफकोर्स सम पीपल आर फ्रॉम आउट ऑफ दिस स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट. सो अपन वी विल हम हिंदी में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम ये मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट. I will share my screen, friends. One second. So friends, ये सेशन अप्रोक्सीमेट जो चलने वाला है, अप्रोक्सीमेट दिस सेशन will for 90 minutes this session will be there. in 90 minutes सेशन चलने वाला है. So be there. आपका पेन एंड पेपर आप लेके रखिएगा वहाँ. आप आराम से बैठिएगा. कुछ आपको बहुत ही अच्छी आइडियाज मैं शेयर करने जा रहा हूँ. देखिए दोस्तों, दिस इज नॉट एन जस्ट अपनी जो क्लास में आप बैठे हैं एंड यू आर टेकिंग जस्ट नोट्स, ये ऐसा सेशन नहीं है. सो दिस सेशन विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन फ्रेंड्स. एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ मेरी पीपीटी. हाँ, यस. सो अगर मेरी पीपीटी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये चैट बॉक्स में आप प्लीज यस ऐसा कमेंट करिएगा, सो आई कैन जस्ट सी दैट. Yes, sir, it's visible. यस यस, ओके. सो विल स्टार्ट फ्रेंड्स. हम डिजिटल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इन एग्री बिजनेस. ठीक है दोस्तों, एग्री बिजनेस में तो इतनी सारी आज संभावनाएं हैं. बट जस्ट वी विल स्टार्ट विद द सेशन. व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. जैसे अपने शुरू में मैंने आपको बताया, दिस सेशन विल बी ऑफ एन 90 मिनट्स. तो 60 मिनट्स का सेशन शुरू में हम जो कर रहे हैं, दैट विल बी प्योरली अ कंटेंट बेस्ड. पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा मैं. एंड आफ्टर दैट आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें होगा. आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है चैट बॉक्स में. सो एक रिक्वेस्ट है आप सबको, जो इधर ये भी है, तो वो लिंक आप जरा प्लीज उसमें भरिएगा फॉर्म, क्योंकि दैट लिंक विल बी देयर. वो जो क्वेश्चंस आपके होंगे उसके अनुसार उसके मैं आंसर सबको दे दूंगा. सो आई रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू प्लीज फिल अप दैट फॉर्म so that we can just have a good session after this 1 hour. So एक घंटा कंटेंट रहेगा, उसके बाद में वी विल हैव एन क्वेश्चन सेशन. तो आपके क्वेश्चंस उस फॉर्म में आप यू कैन जस्ट आस्क मी in that form, so that there is a space given in that Google form. So please anyone share the link once again. uh, so just we will start. So जैसे मैंने शुरू में बताया दोस्तों, this is an one idea can change your life friends. देखिए, एक आइडिया भी आपको अगर आपके दिमाग में आई, दैट कैन चेंज योर लाइफ. दिस इज द बिजनेस. देखिए, एक अगर कोई भी चीज हमें अच्छी लगी कि भाई हमें चलो इससे हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस.
So that can be an one idea pop up in your mind. आपके दिमाग में वो पॉप अप हो सकता है कि भाई चलो ये एक आइडिया मुझे अच्छी लगी, वी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। सो इसीलिए आप ध्यान देखिए इसमें बैठिएगा। दिस इज नॉट, जैसे मैंने शुरू में बताया, बोरिंग पीपीटी नहीं है ये। दिस विल बी एन प्रैक्टिकल सेशन, इम्प्लीमेंटेबल बिजनेस जो है आपको, which is implementable, जो आप implement कर सकते हैं। This is not an bookish knowledge. Actually, I have learned this along my career of 22 years in the agri business. जैसे कि ये नॉलेज, ये नॉलेज है जो इम्प्लीमेंटेशन है। ये नॉलेज नहीं कि जैसे हम मतलब इसके लिए ले रहे हैं। सो दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। एंड द इम्पोर्टेंट लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर इज, मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। एक लास्ट में जो लोग आखिर तक रहेंगे, आई विल बी शेयरिंग अ गिफ्ट विच इज, वो 8 पेज का एक ई बुक है। दैट ई बुक इज हैविंग द इंफॉर्मेशन हाउ टू स्केल एग्री फूड बिजनेस ऑनलाइन का 5 स्टेप में कैसे आप कर सकते हैं। इसका एक 8 पेजेस का एक बुक है। दैट book I am going to share, very informative book that I am going to share. So please I request to you can just fill up that form. जो लोग फॉर्म भरेंगे वो सभी को मैं that gift I will be sharing that gift. So आप वो गूगल फॉर्म मतलब फिलअप करिएगा, लिंक में दे दिया है आप आपके। सो आप अभी ये सेशन में क्या क्या लर्न करने वाले, what we are going to learn in this session, just we will have an look। हम देखेंगे कि इस सेशन में हम क्या लर्न करने वाले हैं। सो सेशन देखिए दोस्तों, व्हाट वी आर लर्निंग, सेलेक्टिंग अ स्टार्टअप। देखिए, जैसे शुरू में मैंने कहा कि देयर आर सो मेनी एग्रीकल्चर। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एग्रीकल्चर इज एन ओशन, ट्रूली एन ओशन। इतना बड़ा है एग्रीकल्चर। मैं आपको बोलता हूँ, आज लोग बोलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट इट इज एन नॉट ट्रू स्टेटमेंट। बहुत कम है बोलते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, हर एक चीज हमारे यहाँ जो है ना एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। बट दैट डिपेंडेंट थिंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द इकोनॉमिकल सर्विस। सो इसीलिए 50 से 50 to 60% everything is dependent in India, especially on agriculture. So इंडिया जैसे एग्रीकल्चर ओशन है, बहुत सारे बिजनेस उसमें कर सकते हैं आप। कितने सारे बिजनेस करते हैं, अनलिमिटेड बिजनेस इसमें कर सकते हैं। इट्स एन वेरी ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी। बट उसमें ऐसा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली सेलेक्ट द बिजनेस, कौन सा बिजनेस हमको सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, गूगल तो है, यूट्यूब है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। बट थिंग इज दैट हमको क्या करना है, सेलेक्ट कैसा बिजनेस करना है, क्या स्टार्टअप स्टार्ट करनी है जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा एंड हमें पैसे भी देगा। दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स, मैं मतलब दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर लोग आके बहुत अच्छा करोड़ों का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे ये चीज बताऊंगा कि नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स आके भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम मतलब देखिए, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज जॉब और गवर्नमेंट जॉब वट एवर, बट थिंग इज दैट हमें एग्रीकल्चर का नॉलेज होकर भी वी आर नॉट अप्लाइंग दैट नॉलेज। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम रिसोर्सेस शॉर्टेज आल्सो, हमारे यहाँ पैसे की कमी रहती है। वट एवर देयर आर सो मेनी मतलब शॉर्ट कमिंग्स, उसमें रिसोर्सेज की हमें कमी होती है। सो दैट मे बी अ प्रॉब्लम, बट थिंग इज दैट नॉलेज हमें एग्रीकल्चर का है। तो आई मीन टू से दैट कि आपको वो नॉलेज यूज करके यू हैव टू जस्ट बिल्ड योर बिजनेस ऑन योर ओन। आपके ओन खुद पे ये बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों। सो ये हम सीखेंगे पहले इसमें। उसमें हम देखेंगे टॉप 15 आइडियाज ऑफ एग्री बिजनेस टू ग्रो ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्री बिजनेस, डिजिटल एग्री बिजनेस में कौन सी ऐसी आइडियाज बहुत सारी आ रही हैं जो अभी, जो नेक्स्ट 10 years ऑफ द बिजनेस, दे आर एक्चुअली रॉकिंग। रॉकिंग मतलब बहुत सारे वो आपको मतलब बेनिफिट दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम जिस के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, सो दैट दे आर गिविंग। सो इसके बारे में चर्चा करेंगे।
देन हाउ टू सेटअप बिजनेस ऑनलाइन कैसे सेटअप करना है, एंड द लास्ट पार्ट विल हाउ टू स्केल बिजनेस ऑनलाइन। ये सारी बिजनेस हम का स्टडी करेंगे हम एक 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 करके। सो ओके, सो इफ यू आर लविंग दिस सेशन, जस्ट यू कैन टाइप लविंग इन द कमेंट बॉक्स। हमें ये सेशन ऐसा इंटरेक्टिव थोड़ा सा करना है, क्योंकि जस्ट हमको बातें करते करते आगे जाना है। सो दिस इज नॉट लाइक, हम जैसे शुरू में कहा कि ये लेक्चर तो नहीं है, जस्ट वी आर ऑल फ्रेंड्स। सो बस मुझे यही, मेरा और आप में डिफरेंस इतना ही है कि मैं जस्ट थोड़ा-सा इसके बारे में जानता हूँ, इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। नथिंग, मैं तो यहाँ टीचर नहीं हूँ, या नॉट आई एम प्रोफेसर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। जस्ट मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। सो ओके, सो व्हाई व्हाई आई एम डूइंग दिस? इनिशियली मैं आपको बोलता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि 22 साल का अनुभव होने के बाद, 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लगता है कि अ, ये जो अभी नए एग्रीकल्चर में बहुत सारे ग्रेजुएट, सारे बहुत बहुत ही टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बहुत ही मेहनती लोग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। इतने अच्छे-अच्छे टैलेंट, व्हाई बहुत सारे अच्छा बिल्ड बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, या करियर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ दे आर लैकिंग, इन्फॉर्मेशन तो है उनके यहाँ, बट डायरेक्शन नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन नहीं, उनके पास दिशा नहीं है। सो डायरेक्शन के लिए मैं ये बिजनेस, मतलब आपको शेयर कर रहा हूँ ये सब चीजें, कि आपको एक दिशा मिलनी चाहिए, एक डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक थोड़ा सा जिसको बोलते हैं मार्ग मिलना चाहिए। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों। सो क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप एडिशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, ये डॉन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। अभी ये तो नई अपॉर्चुनिटीज की, मतलब ये बिजनेस का स्टार्ट हो गया है। सो द फर्स्ट वी विल नाउ गो टू द टॉप 15 एग्री बिजनेस आइडियाज विच कैन ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। ये हम अभी फर्स्ट देखेंगे। सो मेरा अगर स्क्रीन आप देख देख पा रही है, सेकंड स्क्रीन, तो यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये सेकंड स्क्रीन अभी मैंने शेयर किया है। तो जस्ट यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। यस, ओके, थैंक यू तेजस, थैंक यू अश्विनी, गजानन, थैंक यू वैष्णवी, राहुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ओके, थैंक यू नंद किशोर, ओके मृणाल, ओके, थैंक्स, थैंक्स अनिकेत, थैंक्स। सो दोस्तों, सो अभी देखिए, ये टॉप एग्री फूड बिजनेसेस इंडस्ट्रीज दैट कैन ग्रो डिजिटल अ मिलियनर, मतलब ये बिजनेसेस करके यू कैन ग्रो ऑनलाइन। और ये प्रॉफिटेबल जो निशेस है, जो बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दिस बिजनेस एग्रीकल्चर इज एन ओशन, ट्रूली। उसमें बहुत सारे एक 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 प्रोडक्ट भी हमने लिया। सी, वी इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम और इनपुट इंडस्ट्री जो बिजनेस में थी हमारी, कि 1960 में जब हमारा देश में बस खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया हमारे देश में, भारत में, इंडिया में। तो उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के लिए इनपुट इंडस्ट्री, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन है, जैसे सीड्स इंडस्ट्री है, या ऐसी बहुत सारी जिसको हम इनपुट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो इनपुट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो गया। सो दैट इंडस्ट्री वाज एक्चुअली ऑन ग्रोथ पाथ, आज भी है वो, बट आई मीन टू से 1980 टू 2000 तक ये इंडस्ट्री बहुत बूम में थी। सो दैट इंडस्ट्री हैज बीन डेवलप्ड। सो दैट इज एन फर्स्ट इंडस्ट्री। उसके बाद में आफ्टर 2001 एंड 2010 2020, उसके बाद में हो गया द सेकेंड era happened is that agri business में especially the focus has been now converted to the uh, forward linkage. See, forward linkage is very important because forward linkage में हमें फार्म टू फोर्क, हमारे फार्म में जो कुछ हम उगा रहे हैं, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, दैट शुड रीच टू द फोर्क और द टेबल और द किचन। दैट इज द मेन थिंग। सो द रियल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइज देयर। ये जो फॉरवर्ड लिंकेज की जो गैप्स है, सी टुडे ऑल्सो अगर आपने देखा, 80% of the Indian forward linkage agri businesses, actually that chain is broken। आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
आज भी हमको सभी को, हम व्हाट्सएप में भी बहुत बार जोक्स आते हैं कि भाई हमें सब्जियां रास्ते पे मिलती हैं और हमारे मतलब जो चप्पल है, हमारे शूज है, वो शोरूम में मिलते हैं। सो दिस इज द रियल सिचुएशन। सो व्हाई दिस इज बिकॉज वो ब्रोकन है, सिस्टम हमारा ब्रोकन है पूरा। आज भी कुछ लोग इसमें ऑर्गेनाइज आ रहे हैं, जैसे सह्याद्री फार्म्स नासिक है, या भी बहुत सारी कंपनीज उसमें आ रही है, बट देयर इज अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटी। सी ओनली ओनली 10% भी नहीं है, ओनली 5% भी आज तक अभी वो ऑर्गेनाइज होगा। सो 95% इज ब्रोकन। सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज भी लाइज इन द फॉरवर्ड लिंकेज, फूड प्रोसेसिंग, फार्म प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सारे में है। सो ये हमको समझना पड़ेगा, वेयर इज एक्चुअली द रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर लाइज। सी दोस्तों, there is a one era of input industry. Of course there is an era, but you can think of various businesses. आप बहुत सारे businesses का विचार कर सकते हैं, ऑप्शन आप सर्च कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, वो कौन से ऑप्शन है, बट स्पेशली here I am focusing on online agri business especially, and to the forward link especially, not focusing that much on input industry, because input industry is already there. So जैसे एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन से हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखते हैं, एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड नॉन फूड प्रोसेसिंग। अभी ये फूड प्रोसेसिंग तो है, फूड प्रोसेसिंग बहुत सारी इसमें है, बट व्हाट इज नॉन फूड प्रोसेसिंग देन? नॉन फूड प्रोसेसिंग जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ है। वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है, जैसे आज भी हमारे मतलब खेतों में या फिर जो किसान भाई है हमारे, जो कुछ वेस्टेज ऑफ द क्रॉप जो होता है, वो मतलब फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, स्पेशली जला देते हैं। that is actually burned there, and it has actually zero value, no value, and environment को उसका प्रॉब्लम होता है, बराबर। सो टू अवॉइड दैट, बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेस है नॉन फूड एग्री बिजनेस में भी, जो वेस्ट टू वेल्थ हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। वो वेस्ट से आप एक अच्छी इंडस्ट्री आप डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नॉन फूड एग्रो प्रोसेसिंग और नॉट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसमें ये अभी छोटे छोटे सब सेक्टर्स बता रहा हूँ। दिस इज एन ओनली वन सेक्टर एग्रो प्रोसेसिंग वी आर डूइंग। अभी फ्रूट्स में जाएंगे तो इतने सारे फ्रूट्स, अभी मैं कश्मीर से लेके अगर कन्याकुमारी तक जाऊं, या फिर ऐसे इधर ईस्ट से वेस्ट, मतलब आई इफ आई ट्रैवल, तो ये बहुत सारे ईस्ट में हम जाएंगे तो वी आर एक्चुअली देयर हैविंग गार्डन्स ऑफ टी, चाय के बागान आपको मिलेंगे। या फिर आप इस साउथ में आएंगे तो आपको सारा राइस मिलेगा, नॉर्थ में जाएंगे तो एप्पल्स गार्डन आपको देंगे दिखेंगे। तो ये वेरिएशन है, इतने सारे फ्रूट्स है, इतने सारे वेजिटेबल्स है, इतने सारे ग्रेन्स है। सो द थर्ड इज ग्रेन मिलिंग एंड पैकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आशीर्वाद आटा आईटीसी कंपनी बनाती है, दैट्स एन वेरी ग्रेट कंपनी, नो प्रॉब्लम, बट मैं ऐसे बोलता हूँ, ग्रेन जो हमारे यहाँ आता है उसका मिलिंग करके उसका पैकिंग करके बस ब्रांडिंग करना, जो किसी ने सोचा नहीं, तो दैट दैट इंडस्ट्री इज नाउ आल्सो गेटिंग अ वेरी गुड एक्चुअली इम्पैक्ट। वो भी अच्छा बिजनेस बना रही है, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन क्या हो गया है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने एग्री बिजनेस में स्पेशली दोस्तों बहुत ही बढ़ गई है। अब सभी को ये प्राउड है, मुझे तो बहुत प्राउड है इस चीज में कि यार सभी इंडस्ट्री बंद थी, बट मेरा एग्रीकल्चर तो चालू है, मेरा किसान तो, हम काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे, जो इंडस्ट्री में है वो भी काम कर रहे थे, और ये इसलिए काम कर रहे थे कि भाई लोगों को खाना मिलना चाहिए। मुझे तो खाने में कुछ नहीं, मैं तो खुद मेरे खेत में ये बनाता हूँ, बट वो उगाता हूँ, बट दैट डिपेंड अपॉन सभी लोग घर में तो फार्मर हमारा खेत पे था। सो दैट इज एन प्राउड मोमेंट। सो मेरा कहना ये है कि एग्रीकल्चर बिजनेस ऐसा है कि एनीबडी कैन नॉट स्टॉप दिस बिजनेस। अभी इतना बड़ा संकट आया कोरोना का, बट दैट बिजनेस इज ग्रोन रियली। मैंने बहुत सारे इनपुट इंडस्ट्री के पूछा, ट्रैक्टर इंडस्ट्री या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, कि आपका सेल कम हो गया क्या इसमें, तो बोलते नहीं, आवर बिजनेस हैज ग्रोन।
25% ग्रो हो गया है, 10% ग्रो है, 15% ग्रो हो गया। एवरी बिजनेस इन एग्रीकल्चर हैज बीन ग्रोन इन दिस इंडस्ट्री। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो बिजनेसेस बंद हो गए या फिर कम हो गए। तो दिस इज एन एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस। तो ग्रेन मिलिंग पैकिंग में भी बहुत सारा अभी बिजनेस दोस्तों अपॉर्चुनिटी ये आ रही है। उसमें आगे है कि राइस एंड व्हीट कैश रिमेन्स। अभी ये जैसे मैंने शुरू में बता रहा था, ये भी आप बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये एग्रो प्रोसेसिंग में हो गया। दिस इज एन फर्स्ट इंडस्ट्री। नाउ नाउ द सेकेंड यू कैन सी द वेयर हाउसिंग। अभी ये वेयर हाउसिंग में भी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। ये एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग विथ कोल्ड स्टोरेज इंडिया to set to see 45,000 crores investment in warehousing by 2020। अभी देखिए ये सर्वे किया था, तो ये सर्वे ये बात सामने आई है। तो एग्जांपल के तौर पर ये आपको कुछ मैं मतलब ये वेबसाइट में आपको ये मतलब ये खोल के दिखाता हूँ। सी एग्जांपल के तौर पर एक स्टार एग्री नाम की एक कंपनी है। तो ये कंपनी ना सिर्फ ओनली वेयर हाउसिंग है दोस्तों। हम अभी कभी मतलब इसका सोच भी नहीं सकते हैं, बट सी दिस कंपनी वैल्यू चेन। आप अगर ये स्क्रीन देख सकते हैं तो मेरी प्लीज टाइप करिए, मुझे आई एम नॉट गेटिंग बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है तो यू कैन जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नदीम मृणाल। ओके, सो फ्रेंड्स ये देखिए स्टार एग्री। ये बिजनेस कंपनी देखिए दोस्तों ये वैल्यू चेन में है। अभी इसमें अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट में अगर हमने देखा, अभी वेयर हाउस मैनेजमेंट में ये कितने लोग हैं देखो एग्री बिजनेस में। ये लोग गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज लेके these मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये लोग आए आ गए हैं दोस्तों। देखिए ये वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसके बाद में ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पूरा बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज स्टार एग्री इनेबल्स। मैं किसी की यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, बराबर। सो enables farmers to engage directly with buyers of FMCG, food processing, wellness companies to profit from high value customers who demand and secure supply base। दोस्तों मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी है जो जिन लोगों को एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता, बट दे आर मेकिंग वेरी गुड बिजनेस एंड वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्रेंड्स। बिकॉज उसमें उनको सिर्फ बिजनेस का मॉडल समझ में आया है कि भाई लोगों को खाना लगता है, सो उनको बस खाने के लिए देना है, हमको उसकी चेन मैनेजमेंट करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड वी विल गेट एन प्रॉफिट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। मैं मतलब एग्जांपल के तौर पर जो दे रहा था वो एक एग्जांपल है दोस्तों। सो उसके बाद में आपको दूसरा मैं एक एग्जांपल जैसे दे दूंगा। अ, एक मिनट। हाँ, सी ये दिस इज एन अदानी एग्रो एग्री लॉजिस्टिक्स। अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक ये तो एग्री बिजनेस की जो है ना लॉजिस्टिक्स की कंपनी है ये भी। सो दोस्तों ये मुझे जो बड़े बड़े लोग हैं जिसको हम मतलब समझते हैं बिजनेस मॉडल टू एम्पावर फार्मर्स। अभी देखिए ये दिस इज एन अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। इन्होंने तो बहुत ही बड़ा बिजनेस किया है। procurement and handling of silo in bulk, transportation of food grain in bulk form, fully mechanized technology driven storage units। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिजनेस में मतलब ये स्टोर वेयर हाउस में स्पेशली वेयर हाउसिंग में आ रही है। दैट मैं जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ कि जो वेयर हाउसिंग में भी कितना बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। जस्ट वी कैन इमेजिन, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में भी हमारे यहाँ है। जैसे कि एक आईटीसी एग्रो, ये आईटीसी तो आपको पता है, बस इन्होंने भी बस ये देखिए आईटीसी कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये एलटीसी दिस इज एन एलटीसी सॉरी एलटीसी दिस इज एन डिफरेंट कंपनी, बट ये अभी कंपनी जो है एस्टेब्लिश टू मोटिवेट प्रोवाइड कंप्लीट एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट एंड टू कमोडिटी। देखिए दोस्तों हम मतलब तालुका लेवल पे रहते हैं, हम गांव लेवल पे कुछ लोग हमारे दोस्त रहते हैं, या फिर हम अभी बहुत सारे ग्रेजुएट लोग हैं जिनको अभी पता है कि बिजनेस कैसे करना है। सो ये एग्री कमोडिटी में जैसे परचेसिंग करके जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का आज इतना बड़ा रोल है।
एपीएमसी मार्केट का अगर आज प्रॉब्लम, मतलब अगर हम भी सोचा हमने ठीक है एपीएमसी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, बट वी कैन स्टार्ट एग्री बिजनेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम फार्मर से हमारे जो कुछ भी जो उपज निकलती है, जो कुछ सोयाबीन है, गेहूं है, वटेवर, जो सभी चीजें आप उनको डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट मेक इट अ ब्रांडिंग आपका खुद का करके अच्छा ब्रांडिंग करके उसको आप मार्केट में ला सकते हैं। सो ये कंपनियां जैसी मतलब हमें पता भी नहीं इतनी सारी कंपनियां अभी आ रही है। तो ये सारे बिजनेसेस मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वेयर हाउसिंग में है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी है, मैं यहाँ तो बहुत ऑन एंड जा सकता हूँ, बट आई एम शोइंग जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल पर्पज। तो ये हो गया। उसके बाद में नाउ वी आर टर्निंग टू थर्ड। एक मिनट, मैं पानी पीता हूँ। नाउ द थर्ड इज ऑनलाइन इनपुट इंडस्ट्री। जैसे मैंने शुरू में बोला दोस्तों कि इनपुट इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी हम सोचते हैं कि यार सिर्फ अभी तो ना अभी दुकान है, बस ये एक शॉप डाल के हम बैठेंगे दुकान में गांव में या फिर तालुका प्लेस पे। सो दिस इज नॉट द केस नाउ। अभी आप लोग स्मार्ट है, अभी यार यू आर द यूथ्स ऑफ 21st सेंचुरी। आपके आप अभी तो बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग के आप, यार यू आर द यूथ, आप युवा लोग हैं। सो यू शुड मतलब थिंक इन अ डिफरेंट वे, इन अ वेरी यू कैन से वेरी डिफरेंट एंगल। वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ जरा जूम 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 आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। देखिए किसान यार्ड, बिग हार्ट, ये सारी जो कंपनीज है ना, ये ओनली यहाँ इनका कहाँ भी दुकान नहीं है, नो फिजिकल स्टोर, नो फिजिकल स्टोर, ओनली ऑनलाइन बिजनेस। सी फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल आई विल शो। किसान यार्ड, दिस इज एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी कैसे काम करती है, ये ऑनलाइन काम करती है। देखिए डाउनलोड ऑल न्यू एंड्रॉयड ऐप, ये क्या काम करती है, ये इनपुट इंडस्ट्री जैसे यूजर फ्रेंडली ऐप है। ये कंपनी बहुत सारी ऐप से ही काम कर रही है दोस्तों, ये किसान यार्ड नाम की कंपनी। और ये सारा ऑक्शन, ई ऑक्शन, स्टॉक निगोशिएशन, ये बहुत सारा ऐसा काम कर रही है। ये सॉरी इनपुट में नहीं है, इनपुट का मैं आपको दिखाता हूँ एकदम। एग्रो वाला फार्म अगेन, कृषि केंद्र, हाँ ये कृषि केंद्र नाम की वेबसाइट। ये कृषि केंद्र ऑनलाइन ये वेबसाइट है ना, दिस इज टोटली एन ऑनलाइन बिजनेस। कृषि केंद्र देखिए अभी यहाँ एग्री इक्विपमेंट्स, पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, फार्मर थिंग्स, स्प्रेयर्स, नर्सरी गार्डन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड, ये ऐसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लोग अभी तैयार कर रहे हैं कृषि केंद्र। ये अभी जो बिजनेस हो गए हैं दोस्तों, कि आज की तारीख में मेरा बहुत बड़ा मतलब ऐसी जरूरत नहीं है आज की तारीख में कि भाई मैं अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे बहुत बड़ी कंपनी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। नो, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद मिनिमल अमाउंट। आप बहुत ही कम अमाउंट में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा। ये अगर वेबसाइट देखा आपने, सो देखा ये लोगों ने सभी ये ऑनलाइन बेचते हैं, नथिंग इज फिजिकल, बराबर। सो ये सारी अगर चीजें इनपुट इंडस्ट्री में देखें आपने, तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई एग्रीकल्चर में कैसे मतलब हो सकता है, डिजिटल बिजनेस कैसे हो सकता है, वटेवर। सो ये लोग बिजनेस अपने अपने बहुत आगे हैं दोस्तों, ये लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। सो ये सिचुएशन है। ये इनपुट इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है। ऐसे बहुत सारे मैं यहाँ जो फार्म आर्ट, फार्म गुरु, एग्रीटेल.com, ऐसी बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपको दिखाया। तो ये ऑनलाइन इनपुट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। उसके बाद में क्या है, नाउ द फोर्थ, फास। फास मीन्स क्या है, FAAS, फार्मिंग एज ए सर्विस। ये एक नई इंडस्ट्री है, जो अगर आप उनसे भी स्टार्टअप इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए फार्मिंग एज ए सर्विस में, तो ये कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ।
नहीं इधर नहीं हो रहा है। हाँ, सो नीड बेस्ड फार्मर सर्विसेज। अभी नीड बेस्ड फार्मर सर्विसेज में जो अभी जो फार्मर को अभी जो चीजें लगती हैं, क्या लगती है, उनको वो चीजें प्रोवाइड करना। तो ये हो सकता है उसमें, जैसे कि उन लोगों को अभी सपोज स्प्रेइंग के लिए कुछ चीजें लगती हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फार्म मैकेनाइजेशन में स्पेशली एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी हो सकती है, जैसे कि फार्म मैकेनाइजेशन में आप हर एक को पॉसिबल नहीं है कि 5 लाख का ट्रैक्टर ले ले, 50,000 का रोटावेटर ले ले, या फिर बहुत ही कॉस्ट वाला कोई मशीन ले ले, मतलब जो क्या बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट करने वाला मशीन है, या फिर हार्वेस्टिंग का मशीन बहुत बड़ा उसका है। बट एवरीबॉडी इन एवरी विलेज दे कैन फॉर्म रेंटल सर्विस, जिसको जो सर्विस रेंटल हो सकती है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है। ऐसी रेंटल सर्विस हम चालू कर सकते हैं। सो देयर दैट कैन बी एन business, that can be an farming as a service business, that is called need based farmer services। जो उसको सर्विसेज लगेंगे, जैसे कि अगर इसके आगे जाके, ये तो बहुत आगे की बात है, बट यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड न्यूटेक सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फार्म मशीनरी सर्विसेज, ये भी अगर कुछ बहुत ही आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा कुछ अलग करना चाहते हैं, सो दे कैन यू कैन गो फॉर दैट। यू कैन टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन बिल्ड अ स्टार्टअप बिजनेस अराउंड दिस अपॉर्चुनिटी, ये भी हो सकता है इसमें। सो दोस्तों इसमें बहुत सारी, जैसे फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अभी ये भी आ रहे हैं। उसके बाद में फार्म, एक वेबसाइट है फार्मली प्लेस नाम का एक वेबसाइट है। मैं आपको एक उसका एक मतलब दिखाता हूँ, एक वेबसाइट उसकी, एक मिनट। वो अर्बन फार्मिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर है एक्चुअली। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई फार्मिंग क्या ओनली ओनली सिर्फ गांव में ही फार्मिंग होती है कि क्या, मतलब वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। बट आई मीन टू से ये भी अभी अर्बन फार्मिंग इज एन वेरी गुड बिजनेस। जैसे कि हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, आपको एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ, फार्मली एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। फार्म, हाँ फार्मली प्लेस, फार्मली अर्बन फार्मिंग, देखिए दोस्तों की वेबसाइट आपको दिख रही है तो यस जस्ट यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फार्मली प्लेस। अभी ये वेबसाइट, ये स्टार्टअप कंपनी है। देखिए दोस्तों ये क्या बेचते हैं, बराबर, हेल्दी 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 फूड एक्सेप्ट, ठीक है। So no weeds, no herbicides. Killing weeds one of the most time-consuming tasks of any farmer in the soil-based agriculture. In hydroponics, जैसे hydroponics में बेचते हैं, grow in the future, local, fresh and healthy, sustainable। देखिए ये जैसे हाइड्रोपोनिक्स है या सिटी गार्डन है, ऐसी बहुत सारी जो कंसेप्ट्स नई आ रही है, तो ये कंसेप्ट्स अभी इसमें आ रही है, जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। तो ये ऐसी बहुत सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आप शहरों में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूना हो, बॉम्बे हो, नासिक हो, बहुत अच्छे शहर हो, कोल्हापुर हो, ऐसे अच्छे जो शहर है महाराष्ट्र में, तो देयर यू कैन जस्ट स्टार्ट दिस दिस बिजनेस। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जस्ट इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो ये ऐसी बहुत सारी एग्जांपल के तौर पर मैं फार्मिंग एज अ सर्विस आपको मैं दिखा रहा था। सो दूसरा, ये एक कंपनी है बोहेको, बोहेको एक स्टार्टअप कंपनी है बोहेको। ये बॉम्बे बेस्ड कंपनी है दोस्तों। फ्रॉम फार्म टू फ्यूचर, देखिए फ्रॉम फार्म टू फ्यूचर, ये इनका बिजनेस क्या है। बॉम्बे हेम्प कंपनी, हेम्प मालूम है आपको, हेम्प एक क्रॉप रहता है। So that hemp is a crop, and these people are doing this business about this hemp। So ये मतलब मैं यहाँ ये कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि भाई सी एग्री एग्री बिजनेस में, जैसे अबाउट अस अगर हमने देखा, आवर स्टोरी, मीट द टीम, एक मिनट, अब वो है को ब्रांड्स, आवर स्टोरी, ये मतलब आई मीन टू से इतनी सारी जो लोग अभी नॉन एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर में आके यहाँ our formula to take 9,000 year older wonder crop of the Himalayas, cannabis, and transform it into the channel that powers the future।
मतलब ये बोलते हैं कि ये जो क्रॉप है ये बहुत पुराना क्रॉप है और ये क्रॉप का हम इसमें बिजनेस करते जा रहे हैं। वी आर इंसेनली intensely listening to the new sounds of agricultural possibilities. We, Bombay Hemp Company, incorporated in 2023 an agro-based enterprise remaining reimagining the future of Indian agriculture and sustainable living the with hemp as our lens. देखिए ये मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। Hemp uses an kaleidoscope, pull its fiber out and give an yarn. Yarn उससे yarn तैयार हो सकता है. Chop into soft wood and it will be an material shelter. Study genetics and you will find medicine. देखिए ये मेडिसिन बेस्ड बिजनेस में ये मतलब ये लोग है। ऐसी भी कंपनी यहाँ ये स्टार्टअप कंपनी है, मैं इन कंपनी को जानता हूँ। सो दीज आर द नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड जो उसके डायरेक्टर्स है या लोग हैं वो एग्रीकल्चर में बिजनेस में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। सो नाउ फिफ्थ इज न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। नाउ न्यूट्रिशन बेस्ड क्या है? ये न्यूट्रिशन बेस में भी तो ये न्यूट्रिशन बेस का ये भी फंडा इतना बढ़ गया है दोस्तों। न्यूट्रिशन बेस तो कुछ भी लोग आप न्यूट्रिशन बोल रहे हैं यार, गांव से कुछ भी आया आजकल मतलब वो मतलब शहरों में तो इट इज नाउ बिकमिंग यार फैड बन गया है लोगों को यार, कुछ भी नहीं अल्लाह। गांव से जो आया उसका प्राइस ज्यादा। ये है कैसा, ये गांव से आया है इसको कुछ नहीं है, ये बस रॉ है। रॉ फूड, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, दे आर गेटिंग एक्चुअली अ वेरी गुड प्राइस। जो आप रेगुलर स्प्रे करके जो बेच रहे हैं ना, उससे कितने तो ज़्यादा लोग ये परचेज़ कर रहे हैं। जो मतलब दिस इज़ एन ट्रू स्टोरी। पोषण आहार, टॉप न्यूट्रिशन स्टार्टअप्स आ रही है दोस्तों, एक-एक बिज़नेस में। जो मैं आपको शुरू वही बोल रहा हूँ, नेचर्स कार्ड्स नाम से। नेचर्स कार्ड कुछ नहीं है, जो रॉ ग्रो हो रहा है, अपने खेत में ग्रो हो रहा है, नेचुरली ग्रो हो रहा है। एक्चुअली उसमें कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बट इट इज़ वेरी नेचुरली इट्स ग्रोइंग एंड इट्स गिविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कुछ भी हो रहा है, एंड दैट इज़ गिविंग एक्चुअली अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट if you are doing the business of that स्पेशली कॉमोडिटी। सो उसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, सात्विको ये नाम की वेबसाइट है। देखो आप, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सात्विको। सी ये क्या है? मॉडर्न इंडियन सुपर फूड्स फॉर ऑल ओकेजन्स। देखिए अभी ये गुड़ चना चॉकलेट सुपर शॉट्स, अभी ये हो सकता है कि कभी चना का चना से चॉकलेट बना रहे, चना चॉकलेट का कवर उस पे। देखिए मुझे जागरी से गुड़ चना सुपर शॉट्स, ये कुछ भी मतलब हम जो बोलते हैं ना, कुछ भी का मतलब आई मीन ऐसा नहीं, बट दे आर मेकिंग ट्रू बिजनेस रियली। इफ you are feeling thank you Rahul, Kishore, for this your comment। एंड ये जो है ना सर दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि भाई ये हम एग्रीकल्चर का इतना सारा नॉलेज होके, मैं आपको एक बात भी शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो मेरे 22 साल के करियर में देखा कि वी आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आर ओनली एंड ओनली कंसर्न अबाउट ओन टॉट अबाउट ओनली, हमको सिखाया एक ही चीज सिखाया गया है कि भाई वी आर देयर टू ओनली increase the productivity of agriculture। there is nothing bad about that, I'm not telling this is a bad thing, वो तो अच्छी बात है, but nobody is talking about how an agriculture graduate can become an agriculture businessman। एग्रीकल्चर बिजनेसमैन बहुत अच्छा हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट क्यों नहीं बन सकता? व्हाई? मुझे ये सवाल बहुत सालों से मतलब मेरे दिमाग में आता है कि भाई व्हाई दीज पीपल आर ओनली मतलब डूइंग बिजनेस। व्हाई? हमको तो बहुत पता है यार, नॉलेज तो बहुत है, बट क्या नॉलेज, व्हाट इज द यूज? मतलब ये आउट ऑफ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीजें हमें समझना कम से कम इम्पोर्टेंट है, समझना तो कम से कम। इसमें समझ के हमको सेकंड स्टेप हमको ये है कि उसमें एक्शन भी लेना है। सो इसमें बहुत सारी ये वेबसाइट इन्होंने बनाई दोस्तों। सी इसमें ये वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। सात्विको नाम की वेबसाइट है। सो ये बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, इसमें इनका कहीं भी फिजिकल शॉप नहीं है, नो नथिंग, कुछ भी उसमें स्टॉक का कुछ लफड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा मटेरियल रखने का नहीं। आने आने के बाद अगर ऑर्डर आता है तो भी कैश एंड कैरी ऑर्डर आता है। कैश एंड कैरी पैसे पहले दो,
इंस्टामोजो से ऑनलाइन पे करो, गूगल पे से पे करो, बाद में लेके जाओ, 2-3 दिन के बाद वी विल सेंड एंड डिलीवरी। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस दीज पीपल आर डूइंग फ्रेंड्स। सो ये बातें हमको समझना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, उसका नाम मैं रीड कर नहीं पा रहा हूँ, समथिंग। सो दिस इज एन वेबसाइट, जिया लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी पैक डिलीवरिंग हेल्थ ऑफ योर होम। सी दोस्तों, ये अलग अलग है। देखिए ग्रीन टी, ग्रीन टी, ये अलग अलग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये ऐसी अलग इसमें ये लोग आ रहे हैं। सो स्ट्रॉबेरी का कर रहे हैं। सो आई मीन टू से इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो न्यूट्रिशन फूड में है। ये बिजनेस बहुत अच्छा दोस्तों कर रही है। ये फिफ्थ है। सो नाउ वी विल शिफ्ट अवर गेयर्स टू सिक्स्थ, मेडिसिनल प्लांट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। प्लांट बेस्ड, अभी मेडिसिनल प्लांट्स बेस्ड में जैसे मैंने आपको इनिशियली भी एक दो एग्जांपल बताए, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, एक्सपोर्टर्स ऑफ द हर्बल टी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अभी ये हर्बल में कितनी सारी कंपनियां हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जो अभी डाबर है, डाबर इंडिया, ये डाबर इंडिया क्या बेचती है? ये ओनली हर्बल चीजें बेचती है, बराबर। ये कितनी सारी हर्बल चीजें हैं जो, सी, आपको एग्जांपल के तौर पर एक बताता हूँ। ओनली इफ यू डू द बिजनेस ऑफ, एक हल्दी का भी बिजनेस आप करेंगे ना, टर्मरिक, टर्मरिक इज एन ट्रीटेड एंड मेडिसिनल प्लांट। अभी उसका महत्व भी आपको ये कोविड ने आपको मतलब अंडरलाइन किया है। सो उसमें ये इम्पोर्टेंट है समझना कि उस चीज का हमको बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सी, वी आर देयर टू increase the production, no doubt about that. Yes, we agree. But what about the businesses? What about the profits? What about our lifestyles? What about our career? Agri businesses, agriculture graduates का business का क्या है? So, और ओनली हमको सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जाना है या बिजनेसेस में जाना है, बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में जाना है, इसका हमें अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस हमने, हमारे में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों। वी आर ऑल हैविंग टैलेंट्स, वी आर द, मैं आपको बोलता हूँ वी आर वेरी, हम सारे लोग हैं ना, हम बहुत मेहनती लोग हैं। मैं आपको बोलता हूँ मेहनती भी है, उसके साथ हमारे, हम स्मार्ट भी है, होशियार भी है, हमको समझ में भी आता है सब चीजें। बट जस्ट वी हैव टू अनकवर अवर टैलेंट। हमारा जो हमारा कवर जो है ना हमारे ऊपर, कुछ माइंड में या फिर बुद्धि पे हमारे कुछ अगर बैठा है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। So that is the thing. So you can make a medicinal plant business into a very profitable business। जैसे ग्रीन लीव्स है, जैसे कि अभी देखिए ग्रीन टी इंडिया फूड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी। सो ये बिजनेसेस सारे अभी लोग कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स में, जैसे कि आंवला है, या फिर ऐसी बहुत सारी, मैं आपको मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। सो आई कैन गिव दैट। बट देर इज अ चांस, अभी टाइम बहुत कम है हमारे यहाँ, बहुत, अभी तो 1 आवर हो चुका है एंड आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ओनली 50% भी नहीं खत्म हुआ मेरा। सो उसके बाद में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, मैच इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, लैक इंडस्ट्री, लैक मीन्स जो लाख रहता है ना, मराठी में लाख बोलते हैं उसको, वो है। हनी बी फार्मिंग है, उसमें अर्निका लीफ कटलरी है, बाम्बू शूट प्रोडक्ट्स है, बाम्बू के बहुत सारे बिजनेसेस है, बाम्बू के से बहुत सारा जो फर्नीचर बनता है उसका बिजनेस है। लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें जैसे मैंने नीचे दिया है, बहुत सारी उसमें ऑयल एंड बायोडीजल इंडस्ट्रीज, फाइबर बेस्ड, मतलब फाइबर बोर्ड है, पार्टिकल बोर्ड है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। दैट इंडस्ट्री आल्सो इज देयर टू मेक लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉफिट। उनको उसको सिर्फ अनकवर करना पड़ेगा। जैसे अभी मतलब हम एग्जांपल की चर्चा करें, जैसे हनी बी फार्मिंग। यार हनी बी में तो इतना है, हनी बी मिक्सिंग करके कितने सारों को, कितने सारे लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ओरिजिनल हनी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं वी हैव ब्रॉट फ्रॉम हिमालयाज एंड वी हैव ब्रॉट फ्रॉम दिस एंड दैट। बट उसमें ट्रूली, इफ यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट, आप अगर किसी भी खेत में जाएंगे, अगर
हम सबको पता है कि दो लाइन के बीच में अगर हम क्रॉप क्रॉप रोज के बीच में अगर हम छोटे-छोटे ऐसे फार्म हनी बी के अगर ये रखेंगे, बॉक्सेस रखेंगे एंड देयर इफ यू आर डूइंग द बिज़नेस फार्म, हाँ, हनी बी का बिज़नेस करेंगे एंड उसका रॉ हनी जो है, अगर अच्छे क्वालिटी लोगों को देंगे, पूना, बॉम्बे या फिर बहुत अच्छी जो क्रीम सिटीज़ है, अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इफ वी रीच अप टू देम, then why can't we do a good business, a good profitable business? क्यों हम नहीं बना सकते ये चीजें? ये चीज हमको पहले मतलब खुद को पूछनी पड़ेगी कि why this? सो ये इम्पोर्टेंट है, हनी बी का बिजनेस हम कर सकते हैं। तो ये भी उसमें एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एग्री बिजनेस में दोस्तों आता है। So this is an seventh. Now we are now turning to an eighth, ऑनलाइन ग्रोसरी एंड फूड। ये तो इंडस्ट्री अभी इसमें बहुत बढ़ गई। ये जो भी पैंडेमिक था, इस पैंडेमिक में कोविड में दिस इंडस्ट्री एक्चुअली हैज बीन अ वेरी बूम इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों ने जो फिजिकल स्टोर्स जैसे जैसे डीमार्ट थे या फिर बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स थे, नाउ दे हैव बिकम डिजिटल स्टोर्स, वो ऑनलाइन स्टोर्स बन गए हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर होम। आप कुछ भी चीज़ें आप सारी सब्जी भी आप मंगाएँगे तो इट इज़ अवेलेबल इन एट योर डोर स्टेप्स। सो ये बिज़नेस इतना लोगों दोस्तों बढ़ गया है। सो जैसे कि बहुत सारे बिज़नेस हैं इसमें, जैसे बिग बास्केट है, स्टार क्विक, जैसे टाटा का स्टार क्विक है। अभी ये स्टार क्विक ने क्या किया? स्टार क्विक इज़ नाउ प्लानिंग टू टाई अप विथ द वेरी गुड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। टाटा जो ग्रुप की कंपनी है ये ऑनलाइन एग्री बिज़नेस में है स्पेशली। तो ये क्या करती है कि भाई ये दीज आर ओनली टाइम विद अप विथ वेरी गुड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो अपनी गांव लेवल पे हैं, तालुका लेवल पे हैं। एवरी नाउ ईच एंड एवरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इज नाउ ट्राइंग टू टाइप विद स्टार पिक। वो उसके साथ टाइप करके ये, क्योंकि स्टार का टाटा का नाम बहुत बड़ा है, सो यू कैन मार्केट देयर ऑफ योर बिजनेस, वो आप वहाँ कर सकते हैं। उसमें स्पेंसर्स है, स्नैपडील ग्रोसरी है, बहुत सारी, पेटीएम मॉल है, उसके बाद शॉप क्लूज ग्रोसरी है। ऐसी ग्रोसरी में तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बट आई मीन टू से उसमें तो आप यू कैन मेक अ डिफरेंस, आप वहाँ डिफरेंस बना सकते हैं जो आपको अगर रियल रॉ बिजनेस आपका अच्छा बिजनेस अगर प्रोडक्ट दे देंगे तो यू कैन बीट दीज पीपल बाय गोइंग ऑनलाइन। सी दोस्तों, ये तो बड़े-बड़े लोग हैं। आप बोलेंगे यार इतने सारे लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े ऑनलाइन मतलब बिज़नेस है फिज़िकल, जैसे टाटा वाला लोग, उसको हम कैसे मतलब बीट कर सकते हैं? येस यू कैन बीट। सी दोस्तों, इसमें ये है कि आपका ऑनलाइन बिज़नेस, आपका ऑनलाइन अगर ब्रांड अच्छा बन बन जाता है। सी शुरू में मतलब कौन से भी लोगों को अगर काम करना है तो दैट इज़ वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन दैट। हमको एफर्ट्स तो उसमें देना ही पड़ेगा, बट देयर इज़ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें रियल जो आपका जो कस्टमर है उसको आप दे सकते हैं एंड यू कैन जस्ट टेक द रिव्यूज फ्रॉम हिम। और उसमें आप ऑनलाइन उसमें वीडियोस बना के उसको शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। सो उसके बाद में अर्बन फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, जैसे ये भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। सो ये भी उसमें हो सकती है। उसके बाद में नाउ 10th इज गार्डन प्लांट्स एंड टूल्स इंडस्ट्री। ये भी एक बिजनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, गार्डन प्लांट्स एंड टूल्स। अगर दोस्तों आप शहरों में रहते हैं, कोई भी जिला प्लेस है या फिर मेट्रो है या फिर इवन तालुका है, वहाँ आप गार्डन प्लांट्स जो रहते हैं वहाँ चालू कर सकते हैं। नर्सरी छोटी चालू कर सकते हैं। टूल्स, उसके लगने वाले टूल्स है बहुत सारे, वो भी आप चालू कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट दिखाता हूँ, आप मतलब चौंक जाएंगे कि भाई ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं लोग। ट्रस्ट बास्केट नाम की कंपनी है, यू कैन जस्ट चेक दिस वेबसाइट। आप ये जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ग्रो विथ ट्रस्ट, ये क्या क्या बेचते हैं? ये बस जस्ट पॉट्स बेचते हैं, पॉट्स एंड दिस गार्डनिंग किट्स। ये आप दिखाऊंगा नीचे, देखिए गार्डनिंग किट्स, ये पॉट्स, अलग अलग पॉट्स जो शहरों में लगते हैं ना। शहरों में लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है लोगों को। सो क्या होता है कि और इसमें बहुत सारा खर्चा भी करते हैं लोग, बोलते हैं यार बहुत अच्छा रहता है, गार्डन नहीं है हमारे क्या, क्योंकि बहुत बड़े अपार्टमेंट होता है तो दे आर नॉट हैविंग एनी गार्डन नहीं है और प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर फीलिंग एग्जॉस्टेड।
हमको अच्छा नहीं लगता यार, फिर क्या करेंगे? तो देखो इसमें वेजिटेबल्स, इसमें टोमेटो सीड्स ये भी बेचते हैं लोग। सो ये पेस्टिसाइड मैन्योर है, वाटरिंग इक्विपमेंट्स है, गार्डन टूल्स है, ये सारी एक्सेसरीज दोस्तों ये कंपनियां बेचती हैं। ट्रस्ट बास्केट नाम की कंपनी है, ये भी सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करती है। दे आर नॉट एनी हैविंग देयर फिजिकल स्टोर। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन जस्ट हैव एन वेरी ग्रेट बिजनेस। आप इसमें भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी ये मत समझिए दोस्तों कि मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये बिजनेस बहुत ऑलरेडी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ चांस नहीं है। एक्चुअली मैं तो समझता हूँ जहाँ बिजनेसेस है ऑलरेडी उसमें और ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देयर द मार्केट इज़ देयर। मार्केट है वहाँ, आपको सिर्फ उसमें आइडियाज़ लगाना है, दिमाग लगाना है, आपको काम करना है अच्छी तरीके से। जस्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट एंड वो आप बिज़नेस ये कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारी बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी दोस्तों इसमें ये है अपॉर्च्युनिटीज़। सो ये कैन यू कैन जस्ट चेक फॉर योर पर्पस। यहाँ पे जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। सो ऐसी बहुत सारी आपको मैं मतलब यहाँ वेबसाइट यहाँ दिखा उगाओ.com नाम की एक वेबसाइट है। तो वो भी आप गार्डन प्लांट्स में एंड टूल्स में है। सो दिस इज एन अगेन एन एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में लैंड लीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी लैंड लीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत बिजनेस बड़ा है, क्योंकि लोगों को अभी हो गया है दोस्तों ये। अगर थोड़ा सा अगर डिफरेंट माइंडसेट से अपने देखा तो लैंड लीजिंग में लोगों को आज भी अवेलेबल, बहुत सारे लोग गांव से अब शहरों में शिफ्ट हो गए, उनकी लैंड अभी गांव में है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्स। उनके यहाँ कोई रिसोर्स नहीं कि वो अच्छी लैंड कुछ अच्छे भाड़े से जाए, फिर अच्छा उसको कुछ ये मिल जाए। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ऐसा है कि जो बहुत सारी कंपनीज आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उधर आ रही हैं, एंड दैट आल्सो कैन बी एन बिग अपॉर्चुनिटी। सो 12th इज एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स में भी एंड अगेन एग्री कमोडिटी बिजनेस एक्सपोर्ट सीजन अगेन ह्यूज एंड ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ये भी बहुत महासागर है दोस्तों। इसकी अगर आपको ध्यान में आ गया तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। एग्री एक्सपोर्ट्स तो हर एक चीज यहाँ अभी एक्सपोर्ट हो रही है भारत देश में। सो इट्स एन इंडिविजुअल एंड वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और ये भी उसमें बहुत बड़ा है। उसमें 13th है हाइड्रोपोनिक्स, जैसे शुरू में हमने चर्चा की। हाइड्रोपोनिक्स इट्स ऑन इट्स ओन, इट्स एन वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री, इट्स एन ओन इंडस्ट्री, इट्स एन ह्यूज इंडस्ट्री। उसमें बाद में है ऑनलाइन सीएचसी, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर। जैसे हमने शुरू में देखा कि भाई अगर रेंटल फार्म मैकेनाइजेशन में अगर कुछ मशीनरी आप रेंटल देते हो, दैट इज कॉन एन ऑनलाइन कस्टम हायरिंग सेंटर, वो भी आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं। हेरिटेज नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हेरिटेज नॉन फूड प्रोडक्ट्स का मतलब है बाम्बू, क्वायर, खादी, वेस्ट वेल। अभी जैसे क्वायर का मैं एग्जांपल देता हूँ। क्वायर तो ऐसे वेस्ट है। क्वायर क्या होता है कि भाई जस्ट हम बोलते हैं ना उसे कि इट इज एन नारियल होता है, उसका वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्वायर। क्वायर, सो क्वायर से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अगर आप क्वायर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, सो देयर यू विल फाइंड अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। आप कभी जाके देखिएगा, अभी टाइम के इससे मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, बट क्वायर बिजनेस एंड बाम्बू, बाम्बू भी इतना बड़ा बिजनेस है। देखिए दोस्तों, अभी इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बहुत सारे हैं कि जो लोग अभी जो दीवारें मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो बाम्बू का यूज ज्यादा करते हैं। अगर बाम्बू एग्रीकल्चर में बाम्बू लगा के आप उसका अगर मतलब यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे जो क्रीम लोग हैं, अच्छे जो पैसे वाले बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके पास बहुत ही मतलब अच्छा पैसा है, अच्छा खासा, तो वो घर बनाने में, उनका फार्म हाउस बनाने में, या फिर उनका सेकेंड होम बनाने में ये बहुत सारे बाम्बू यूज करते हैं। इवन दे आर यूजिंग देयर एवरीवेयर, दे आर यूजिंग बाम्बू इन देयर फर्नीचर वगैरह सवेरे में। तो दैट कैन बी एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसमें चेयर बनता है बाम्बू से, एवरीथिंग इज देयर। सो दैट कैन बी एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों ये दीज आर द 15 इंडस्ट्रीज। मैं आपको जैसे शुरू में बोला कि एग्रीकल्चर इज अ ट्रूल एंड ओशन, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने शॉर्ट में इसमें बताया आपको दोस्तों। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें हर एक बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है। वन क्रॉप $1 million इंडस्ट्री। मैं मतलब ये कहता हूँ बार बार कि भाई एक क्रॉप भी अगर एक बिजनेस में अपन फोकस किया आपने, तो उसमें आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज एन यू कैन से कैपेसिटी इन ऑल दिस एग्री बिजनेसेस। सो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है।
तो जस्ट आपको ये कैसा लगा, जस्ट यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मतलब थोड़ा-सा ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं 1-2 मिनट का। बट वी कैन कंटिन्यू इफ यू से जस्ट यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आपको कैसे लगा ये अभी तक का सेशन। सो जस्ट वी कैन गो फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू। वेरी इन्फॉर्मेटिव। देशमुख, वैष्णवी काटे, नाइस। प्रीति, प्राजक्ता पानसकर, थैंक यू प्राजक्ता। तेजस, थैंक यू तेजस। सो अभी ये यस, मृणाल थैंक यू, राजेंद्र थैंक यू, निकिता कोरडे, आपको अगर थैंक यू फॉर एवरीबॉडीज कमेंट हियर। सो यस, थैंक यू सूर्यकांत, राजकुमार, भारत, अश्विनी कांबळे, प्रदीप शिंदे, यस थैंक यू स्नेहा, थैंक यू स्नेहा, रंजीत कलारे। सो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सुमित, विजय धापसे, थैंक यू ऑल। यस यस यस, कृतिका, आई एम वेरी ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल, थैंक यू। सो दोस्तों हम नेक्स्ट अभी थोड़ा सा पार्ट के ऊपर ये करेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई नाउ वी विल टर्न टू द सेकेंड। अभी देखिए दोस्तों, डिजिटल स्टार्टअप्स, टाइप्स ऑफ एग्री बिजनेसेस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बिजनेसेस है ना, बहुत ही वास्ट है, बराबर। टॉप 15 इंडस्ट्री आपको अपने अभी हमने जैसे देखी। तो जस्ट मैं एक मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन शायद शुरू में दिया है, बट जस्ट आई मीन विद इन एन 5 मिनट्स आई विल जस्ट शेयर वन पीपीटी अबाउट माई सेल्फ। मैं आपको 2 मिनट में हु आई एम जस्ट शेयर करता हूँ। सो एक मिनट। यस, तो दोस्तों ये मेरा अगर आपको स्क्रीन दिखता हो तो यस यू कैन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। सो जैसे शुरू में बताया दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद बिरादर एंड आई एम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर, कंप्लीटेड माय एमबीए इन मार्केटिंग 1998 में कंप्लीशन होने के बाद एमबीए कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट आई एम वर्किंग। मैं सीनियर पोजीशन में बहुत सारे प्राइवेट में मैंने काम किया, कॉर्पोरेट्स में, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया मैंने 10 एक साल तक। अभी आई एम ऑल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फार्मर फैमिली, बहुत सारे बहुत किसान के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ दोस्तों मैं। एक्चुअली वेरी जो इनिशियल मेरी जो मतलब पढ़ाई हो गई, दैट इनिशियल जो फेज था चाइल्डहुड वाज एक्चुअली, इट वाज वेरी स्मॉल विलेज। जो जिला परिषद का स्कूल रहता है जिसको हम जिला परिषद स्कूल बोलते हैं मराठी में, तो दैट वाज माय चाइल्डहुड एक्चुअली। 4th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पढ़ा। तो अभी बहुत सारे स्कूल डेज में बहुत स्ट्रगलिंग था। दैट वाज वेरी स्ट्रगलिंग बिकॉज क्या है कि स्कूल डेज में फाइनेंशियल कंडीशन हमारे फैमिली की बहुत अच्छी नहीं थी। बट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज टू डू वन थिंग दैट, मैं एक दूध वाला बन के मैंने काम किया है। सो मैंने शुरू में जब स्कूल में जाता था तो मैं एवरीडे 2 लीटर दूध बस उसको सप्लाई, एक हमारे बिजनेसमैन थे उधर एक, तो मुझे इनकम सोर्स मिलता था उनसे। सो दैट हैज बीन एक्चुअली माय चाइल्डहुड। तो उससे मैं एक सीखा कि भाई हमारे मतलब कुछ भी हम जो करते हैं, तो बिजनेस हो, बिजनेस में हमको कुछ भी शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। सो मुझे मेरी मतलब मेरी माँ ने सिखाया कि भाई, माय मदर हैज टॉट कि भाई नहीं, देखो कुछ भी आप कर रहे हैं आपके पैसे के लिए या फिर उसमें आपको ऐसा शर्म नहीं आना चाहिए। सो बिजनेसेस इज लाइक दैट। सो दैट लेसन हैज बीन एक्चुअली टॉट एट माय चाइल्डहुड ओनली। सो उसके बाद में मैंने आई हैव जॉइंड मेनी कंपनी, जस्ट जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। सो उसमें ये है दोस्तों, शुरू में थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ कि डिग्रीज आर नॉट मेकिंग करोड़पति। ये मेरा स्टेटमेंट रेगुलर रहता है कि डिग्रीज तो देती है, हाँ, हम डिग्रीज वाले हैं, डिग्री होल्डर है, बट हमको सिर्फ ऐसे पढ़ाया जाता है कि डिग्रीज वी आर मेकिंग ओनली फॉर सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन, सर्व लोगों को नौकरी कैसे करना है ये हमको सिखाया गया, नॉट टू डू द बिजनेस। So that is an our educational system, current educational and employment system is actually we are learning, is only learning actually teaching that only। हम सिर्फ क्या करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं, मतलब और क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, मार्क लेते हैं, मतलब मार्क अच्छा मार्क लिया तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, ऐसा हम बोलते हैं। बट आई थिंक आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली।
हमें ऐसा नहीं लगता, सिर्फ अच्छा अगर मार्क लेते हो बहुत अच्छा आप नौकर बनने के काबिल हो। आई एम एक्चुअली नॉट क्रिटिसाइजिंग बट दिस इज एन फैक्ट आई एम टेलिंग सो फ्रेंड्स। सो बट हियर आई एम ये मैं आपको बता किस ले रहा हूँ कि भाई आई वांट टू टेल वन थिंग हियर। आज आप ये बहुत इनिशियल फेज में अभी आप एज के बहुत इनिशियल फेज में स्टार्टिंग फेज में हैं, आप यूथ हो, आप जस्ट ग्रेजुएट हो और आप इनिशियल स्टार्ट करने वाले हो अपने बिजनेस को, अपने अपने करियर को। बस मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बात आपको मतलब बहुत ही मतलब काम आएगी। शायद ये बात कुछ लोगों को भी पता लगा, बहुत अच्छा लगा तो आपको बहुत ही दिल से काम आएगी। क्योंकि मैं एक रेगुलर बोलता हूँ कि मैं एक बोलता हूँ कि फॉलो योर हार्ट। जो कुछ भी अपने बिज़नेस में आप करने जा रहे हैं ज़िंदगी में आपके, जो कुछ करियर आप करो, नौकरी करो। नो आई एम नॉट टेलिंग नौकरी इज़ बैड, जॉब इज़ बैड, ऐसे मैं नहीं कहता। बट थिंग इज़ दैट आपको जो आपके बिज़नेस में अपने लाइफ़ में आपने क्या किया है कि भई मुझे क्या करना है, बिज़नेस करके बहुत बड़ा बनना है या फिर मुझे नौकरी करके नौकरी में बहुत बड़ा बनना है। व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर देयर, आपके कुछ भी सपने हो, व्हाटएवर आर ड्रीम्स यू फॉलो दैट। ओनली वन थिंग इज दैट फॉलो योर हार्ट। और जो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको बोलता हूँ जिस जो चीज आपको करने में जो मतलब जैसे बोलता हूँ मैं, जो स्किल जो इजीली आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है मेरे फादर ऐसा बोलते हैं, मेरी मदर ऐसे बोलती है, मेरे मतलब जो कुछ फ्रेंड्स है तब ऐसा बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। सी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि फॉलो योर हार्ट मीन्स क्या है कि जो आपको लगता है यार ये चीज मैं अच्छा कर सकता हूँ। सी मैं एक बोलता हूँ आपको, देखो एवरीबडी हियर इन दिस रूम, ये रूम में आज एवरीबडी जो है ना, आप हर एक के पास एक बहुत अच्छी ताकत है दोस्तों, बहुत अच्छी आप बहुत अच्छे हो। जिसकी चीज में आप एक चीज में ऐसी बहुत अच्छे हो जो स्किल वो आप मेरे को नहीं आ सकता, मुझे नहीं है वो स्किल जो आपके पास है। एवरीबडी हर एक के पास है। बट ओनली वन थिंग इज आपको वो सर्च सर्च करनी है, आपको आपको पता लगाने की यार मैं ये चीज अच्छा कर सकता हूँ। सो यू डू दैट, वो चीज करो आप। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, रियली मैं कुछ भी आप नहीं लेके जाएंगे इस वेबिनार से, ये भी अगर चीज लेके जाएंगे, फॉलो योर हार्ट। और जो आप अच्छा कर सकते हो वो करो, जिससे आपको पैसा मतलब धीरे धीरे आगे मिल सकता है। बट दैट इज वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं मेरे पापा बोलते हैं मैं डॉक्टर हो गया, फिर या फिर मेरे पापा बोलते हैं इसीलिए इंजीनियर हो गया, या फिर किसी ने और ने बोला, नो 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 दैट इज नॉट द थिंग। सी आपका ग्रोथ कभी हो सकता है, आपका ग्रोथ तभी हो सकता है इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, फॉलोइंग योर हार्ट, फॉलोइंग योर स्किल्स, ओन स्किल्स जो रियल स्किल्स है, वो स्किल सेट आप फॉलो करो। माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट एंड टैक्टिक्स, ये ऐसा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, पीएचडी हो, वॉट हो, लेकिन नोबडी हैज टॉट दिस थिंग टिल नाउ। मैं तो आपको तो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मतलब नौकरी करते करते 12-15 साल तक मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि भाई मैं कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट, मुझे ही नहीं पता था मैं जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। सो दैट शुड नॉट बी योर सिचुएशन माय फ्रेंड्स। ये ट्रूली आपको इसलिए बता रहा हूँ। सो दैट इज एन थिंग दोस्तों। सो दैट इज द थिंग, यू फॉलो योर हार्ट, वट एवर यू, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। सो उसके बाद में मैंने जैसे आपको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखा। उसके बाद आई स्टार्टेड एंड मैंने स्टार्टअप एग्रीकल्चर में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक स्टार्टअप एग्री बिजनेस चैलेंज में मैंने न्यू दिल्ली में मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था, तो आई हैव बीन सेलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड देयर। और उसके बाद में मैंने यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट किया। अभी यूट्यूब चैनल मेरा अच्छा ही मतलब ट्रैक्शन है उसमें। सो ये मेरा जर्नी है दोस्तों। सो बहुत सारे वेबिनार्स में अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब लाभ उठाया है। मोर देन 100 एग्री बिजनेस वेबिनार्स अभी तक मैंने किया है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। मोर देन 1500 पीपल, उससे ज़्यादा भी आज मतलब मैं लोगों को ट्रेन मैंने किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं जाते रहता हूँ। सो दैट इज माई अबाउट मी दोस्तों। सो नाउ वी विल टर्न टू आवर नेक्स्ट दिस थिंग। सो if you can see my second screen, then you can just
yes. So now see दोस्तों, how to start, how startups ecosystem developing around an idea. अभी जो स्टार्टअप्स हो रही हैं हमारी भारत देश में, वो कैसी हो रही है, कुछ किस चीज़ की हो रही है, कैसे काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन करेंगे। एंड नाउ विदिन मैं शॉर्ट में भी कर रहा हूँ क्योंकि नाउ ऑलरेडी इट्स एन 1 एंड हाफ आवर वी आर रीचिंग 90 मिनट्स, बट विदिन वेरी शॉर्ट पीरियड आई एम जस्ट कवरिंग दैट सेटिंग अप एन एग्री बिज़नेस डिजिटली। लास्ट में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। सो दोस्तों एक रिक्वेस्ट उसके बीच में मैं आपको कर रहा हूँ। मैं आपको एक जस्ट फिर एक बार आपको एक चैट बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ, सो प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है, इसमें आपको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक लिंक में। जो जो लोगों ने अभी तक जो लिंक, हाँ, शायद ओंकार ने दिया है, थैंक यू ओंकार फॉर दिस। सो ये लिंक में आप जस्ट यू कैन फिल दिस अ फॉर्म, आपके क्वेश्चन जो कुछ है आप पूछिए। उसमें जो कुछ भी आपको, यू कैन आस्क जस्ट इन स्मॉल क्वेश्चन ऑल्सो फ्रेंड्स। ये एक छोटा भी क्वेश्चन से उसमें पूछ सकते हो, नथिंग लाइक टू, उसमें ऐसा कुछ झिझकाने की बात नहीं कि यार ये किया क्या, ये क्वेश्चन है क्या, एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि नहीं। देखिए, एवरी क्वेश्चन इज क्वेश्चन। जो कुछ आपके दिमाग में आप स्टकअप हो, यार मुझे लगता है ये चीज मुझे नहीं समझ में आती, तो यू कैन जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। so please I request to please fill up that form. So now we will turn to the next. Okay. uh, okay, thank you जिन्होंने भरा है, that is okay, but those who have not responded, please do that. So yeah, yes, हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, यस, Yes. यस, यस, थैंक यू। चलो, सो फ्रेंड्स, अभी नाउ स्टार्टअप्स इन एग्री बिजनेस, इसके बारे में हम जस्ट वी विल स्टार्ट। ये जो स्टार्टअप्स है एग्री बिजनेस में, मैंने स्टार्टअप्स के बारे में बहुत अच्छा मतलब एक रिसर्च किया था। उसमें रिसर्च में मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे ध्यान में आ गई कि हमारे जो यूथ्स है अभी, इवन जैसे मैं आपको बोलता हूँ एग्री बिजनेस के बहुत सारे यूथ्स अभी आजकल इतने मतलब स्मार्ट मतलब हो गए। एंड सी वन थिंग इज, मैं आपको एक उसमें बोलता हूँ, जो स्टार्टअप बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस आप करो फ्रेंड्स, बट एक उसमें काम करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो कुछ प्रॉब्लम आज किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो, जस्ट यू हैव टू जस्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड दैट इज अ बिजनेस। बिजनेस इज नथिंग बट सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू विल गेट। वो कैसे, आपको एग्जांपल के तौर में बताता हूँ। सो थोड़ा सा हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के बारे में हम देखेंगे इंडिया में। सी इंडिया में अभी तक एनुअल 12 to 15% उसका ग्रोथ हो रहा है एवरी ईयर। अभी तो 50,000, ये तो सारे मतलब डिपार्टमेंट या सारे इसके स्टार्टअप से 50,000 स्टार्टअप से, नॉट अबाउट एग्रीकल्चर बट इस सभी के मैं आपको बोल रहा हूँ। अराउंड 8,000 to 9,000 एवरी ईयर स्टार्टअप्स हमारी इंडिया में ऐड होती हैं। एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट हम इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट आई थिंक, थर्ड लार्जेस्ट। ओके। एंड फंडिंग, बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग भी होती है। क्योंकि जैसे प्राइवेट फंडिंग का मतलब है कि कुछ कंपनियां, जैसे आपकी आइडियाज अच्छी लगी, इफ योर आइडियाज आर वेरी ग्रेट, देन इवन प्राइवेट इन्वेस्टर जस्ट लाइक टाटा, रिलायंस and all these fellows are, they are there to support you, they are there to invest in your business. बहुत सारे अच्छे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अगर अच्छी आइडिया आपको पसंद आती है तो दे आर जस्ट पिकिंग योर स्टार्टअप, आपके स्टार्टअप परचेस नहीं, आपके बिजनेस में शेयर डालते हैं, पैसा डालते हैं। उनको बोलते हैं अभी इवन रतन टाटा की मैं आपको बात बताता हूँ कि वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली एग्री बिजनेस में भी उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। सो आपके अच्छा आइडियाज हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज हो, तो आप यू कैन जस्ट एक्चुअली रीच आउट टू मेनी इन्वेस्टर्स। तो ये भी हो सकता है उसमें। सो ड्राइवर्स फॉर स्टार्टअप बेस्ड इकोसिस्टम, वो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट भी सपोर्ट्स लोग करते हैं, जैसे आपको शुरू में मैंने बताया। सो उसमें थर्ड जो पॉइंट है मेरा, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। अभी इंडिया में अब इतनी सारी अलग अलग स्टार्टअप्स है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज। जैसे एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ,
जैसे यहाँ यस फार्म्स एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक कंपनी की वेबसाइट दिखाता हूँ। सो यू कैन नॉट इमेजिन ये बिजनेस भी हो सकता है क्या? सो यस फार्म्स नाम की एक कंपनी है, तो ये बिजनेस क्या करती है दोस्तों? दिस कंपनी एक्चुअली इज now see welcome to S Farms India's first agri land marketplace। एग्रीकल्चर लैंड है ना, ये लीज पे देती हैं, सेल आउट भी करती हैं, स्टेट लैंड, स्मॉल फार्म्स, एग्री लैंड्स, लैंड सर्विसेज। ये जो बोल रहा था मैं आपको इमीडिएटली कि भाई लैंड सर्विसेज के यहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, बट दिस इज एन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हियर यू कैन जस्ट द लिक्विड, यहाँ क्या लिखा है देखो, लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल एग्रीकल्चर लैंड, स्मॉल फार्म्स एंड स्टेट लैंड, सिंप्लिसिटी वे टू अवेल लैंड सर्विसेज। अभी देखिए ये एक लैंड सर्विसेज की भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा, बट दिस इज एन डिजिटल सोल्यूशन टू एन एग्रीकल्चर। सी दोस्तों यह देखिए आप, दिस इज एन, ये हैदराबाद में इनकी कंपनी है, दिस बिजनेस इज नाउ बेस्ड एट हैदराबाद एंड तेलंगाना में। सो दीज पीपल आर नाउ सी हियर एग्रीकल्चर लैंड फॉर सेल इन आंध्र प्रदेश, इन महाराष्ट्र। अगर इसमें आप जाएंगे तो मैंने देखा इस, आप बाद में कहीं जाइए, इसको अभी टाइम नहीं है मेरे पास, सो बट अगर इसमें डिटेल दिया है उसमें, अगर आपके नासिक एरिया में आपके या फिर किसी भी पुणे एरिया में कौन सी लैंड है, तो जस्ट यू कैन लोकेट दैट लैंड। अभी सभी चीजें इसमें कर सकते हैं। सो देर ये स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों। अभी आप मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ दिस these companies are growing their businesses। an idea can just, मैंने जैसे बोला कि an idea can change your life। एक आइडिया है कि भाई जस्ट अरे यार दे सकते हैं कि ये चीज कर सकते हैं कि ऑनलाइन, ये कर सकते हैं। सी दिस इज एन एग्जाम्पल। सो ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनियां हैं जो एक आइडिया लेके आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। ये यस फार्म नाम की ये एक्चुअली ये कंपनी है। जैसे कि एजी नेक्स्ट नाम की एक कंपनी है, ये एजी नेक्स्ट भी मतलब ऐसी नए इसके भी ऊपर काम करती है। जैसे कि एक क्रो फार्म, अभी क्रो फार्म क्या करती है, जस्ट वी विल सी। क्रो फार्म एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं कुछ या दो तीन साइड दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा तो नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। सो ये क्रो फार्म क्या करती है? आवर एम इज टू सप्लाई चेन सपोर्ट फार्मर्स प्रोवाइड। देखिए क्रो फार्म डिमांड ड्रिवन, जीरो वेस्टेज, टेक एनेबल्ड सप्लाई चेन फॉर फ्रेश इन इंडिया बिल्डिंग। देखिए दिस इज एन स्टार्टअप, ये सक्सेसफुल स्टार्टअप है दोस्तों। आई थिंक ये तीन तीन या 4 साल पहले स्टार्टअप चालू किया है। दो तीन कुछ लोग यंग, आप जैसे यंग लोग थे, एंड दे हैव स्टार्टेड दिस क्रो फार्म कंपनी। सो डिमांड फास्ट डिलीवरी ऑन डिमांड हार्वेस्टिंग, कंज्यूमर बिजनेस, मैक्सिमम फ्रेशनेस। देखिए मतलब इमीडिएटली उनको कस्टमर को जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश सर्विसेज दे सकते हैं ये सब लोग। सो द इकोसिस्टम हैज बीन डेवलप्ड हियर विद द मतलब विद द फैक्ट दैट कस्टमर शुड बेनिफिट। सबसे इम्पोर्टेंट एक बिजनेस में बात होती है दोस्तों, तीन विन, थ्री विन शुड बी देयर। अ फार्मर शुड विन, फर्स्ट थिंग। Second, the fellow member businessman should win, and the third consumer should win। ये तीन विन जहाँ आपको मतलब विन होंगे, सो देर इज नथिंग लाइक दैट, नो बडी कैन स्टॉप यू। ये अगर तीन विन आपको अगर समझ में आती है तो यू कैन जस्ट ग्रो योर बिजनेस एंड एट मल्टीफोल्ड। सो ये आपको एक एग्जाम्पल मैं क्रो फार्म का बता रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपको एक ना इंटरेस्टिंग एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रूट बॉक्स, एक फ्रूट बॉक्स नाम की एक कंपनी है। जस्ट आपको मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें भी मतलब होती हैं इंडिया में भी। ये फ्रूट बॉक्स नाम की कंपनी है। ये फ्रूट बॉक्स एंड कंपनी क्या करती है? सो दिस कंपनी ऑफर्स एंड क्वालिटी फ्रूट्स अवेलेबल फॉर गिफ्टिंग। गिफ्ट करने के लिए ये मतलब ऑफर करती है, गिफ्ट के लिए, या फिर आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए डेली ऑफर्स फ्रूट बॉक्स एंड डू इट योर सेल्फ फॉर्मर कुक, आप कुक ये कर सकते हैं। देखिए डेली फ्रूट्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, ये रॉ फूड्स। देखिए ये ऐसी भी मतलब कंपनियां हैं जो, दिस इज एन दिल्ली बेस्ड कंपनी, टॉप 5 फ्रूट्स टू सेवर दिस मानसून, जो ऑफर देते हैं अलग अलग। ये बॉक्सेस ऐसे बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट के मतलब फ्रूट्स के आप गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए फ्रूट बॉक्स एंड कंपनी, ये आप ड्राई फ्रूट के गिफ्ट, ड्राई फ्रूट को तो रेगुलर गिफ्ट होते हैं, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी गिफ्ट देती हैं ये लोग। सो दिस इज एन अलग टाइप ऑफ कंसेप्ट।
ये अलग टाइप का कंसेप्ट है, ये भी आप ऐसी मतलब कुछ कंसेप्ट आप मतलब करके बिजनेस कर सकते हैं। सो ये ऐसी सारी कंपनी है। सो उसके बाद में ये आर्या कोलैटरल, फ्रेश एंड फ्रेश वीएनएल, ये विल फ्रेश नाम की एक कंपनी है, शायद आपको लोगों को पता होगा विल फ्रेश। ये भी बहुत ही स्टार्टअप अच्छी स्टार्टअप है। जस्ट आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ये चीज़ें। इसमें बहुत सारी ये है, ये विल फ्रेश देखो ये क्या करती हैं। हाँ, ये विलेज से लेके देखिए दोस्तों, विल फ्रेश द बेस्ट फूड यू कुड एवर बाय इज फ्रॉम फार्मर्स। देखिए, अभी जो कंसेप्ट अब बन रहा है दोस्तों, देखिए जो चीज़ें डायरेक्ट विलेज से, डायरेक्ट गाँव से लेके शहरों तक आती है ना, विदाउट एनी पैक, मतलब बहुत अच्छा पैकिंग की ज़रूरत नहीं लोगों को, लेकिन सो भी पैकिंग होगा, लेकिन if these are original things, if you are they are organic foods, if you are those are organic, मतलब उसका जो अगर सोर्स ऑर्गेनिक होगा, तो नथिंग लाइक दैट दीज पीपल, अभी इसका ही मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये विल फ्रेश नाम की कंपनी है, ये चीज़ें क्या-क्या देती है देखो, आई थिंक डेयरी फूड्स में है। लेमन एग्रो इज़ बोर्न टू विज़न टू ब्रिज द रूरल एंड अर्बन गैप। देखिए रूरल अर्बन गैप का ब्रिज इन्होंने कम करने का सोचा है। In the rural India, not even two-third of what being paid by consumer reaches to, हाँ देखिए यहाँ, मतलब ये लोग बोलते हैं फार्मर्स को ना, अगर 10 रुपए से वहाँ चीज हम कुछ खरीदते हैं, 100 रुपए में हमको यहाँ सिटी में मिलती है। सो व्हाई, बट माय फार्मर, मेरा जो किसान है उसको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। एक्चुअली ही इज एन प्रोड्यूसर, ही इज एन एक्चुअली ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट उसको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ लोगों को ज्यादा मिल रहा है। सो ये कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए विल फ्रेश नाम की कंपनी ने तैयार की है। सो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, संभावनाएं हैं। सो वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड आवर टाइम 1:30, बट जस्ट I'm covering to the last session, coming to the last session, and that is uh, सेटिंग एंड डिजिटल बिजनेस। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट जस्ट आपको मैं शॉर्ट में इसका मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एग्री बिजनेस, ये उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। एक मिनट, उसमें ये सारी इसमें चीज़ें हैं। लास्ट सेशन में आपको हाँ, स्टार्टअप एग्री बिजनेस सेटिंग अप, हाँ, सेटिंग अप एग्री बिजनेस डिजिटली, सीक्रेट्स कुछ हैं उसमें। देखिए सेटिंग अप एग्री बिजनेस डिजिटली, ये जो है ना, इसमें बहुत सारी अभी ये है इंफॉर्मेशन है, फिर भी जस्ट शॉर्ट में आपको बताता हूँ। द पावर ऑफ इंटरनेट इन एग्री बिजनेस, इंटरनेट का जो पावर है एग्री बिजनेस में वो बहुत बड़ा है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने देखा कि इफ यू आर स्टार्टिंग योर एनी बिजनेस, सो यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस विदाउट एनी, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन, यू कैन जस्ट फॉर्म एन योर वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट द बिजनेस, बिकॉज वेबसाइट ये क्या है, वेबसाइट इज एन एक्चुअल, इज अ होम ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन होम है ये। कुछ भी आप अगर आज की तारीख में अगर सर्च करेंगे तो एवरीबडी इज हैविंग यूट्यूब और गूगल सर्च, many more people are going for Google searches. So आपका कुछ भी अगर अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही आपने सोना भी बनाया, लेकिन आपका मार्केटिंग नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, तो व्हाट इज द यूज। सो जो दिखता है वो बिकता है। सो उसको दिखने के लिए क्या ही है, तो आजकल गूगल ही है। गूगल के अलावा क्या है हमारे यहाँ। सो इफ यू वांट टू स्केल, आप अगर एक स्मार्ट स्केल करना चाहते हो आपके बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो इवन बहुत बड़ा तो छोड़ो, आजकल इवन कुछ भी चीज़ों के लिए आप, आजकल डॉक्टर भी कोई होगा तो डॉक्टर का भी आजकल ऑनलाइन मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उसका, नाम होता है उसका, उसका डिटेल्स होता है, सभी चीज़ें उसके ऑनलाइन होती है। सो दैट वे होम ऑनलाइन वेबसाइट आपको होना ही चाहिए। देन नो नीड ऑफ फिजिकल स्टोर, इसके बारे में बहुत मतलब बात कर सकते हैं हम। एग्रीकल्चर फ्रीलांसिंग अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है। एग्रीकल्चर फ्रीलांसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि एवरीबॉडी, हर एक को हर चीज़ नहीं आती, बट एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन कोलैबोरेट विथ सो मेनी पीपल। अगर मैं कुछ चीज़ में अच्छा हूँ तो आप, जैसे मैंने शुरू में बताया, एवरीबॉडी इन दिस रूम इज एन वन स्पेशलिस्ट, हर एक का कुछ तो कुछ स्पेशल पावर है। सो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसमें फ्रीलांसिंग एग्री बिजनेस में कर सकते हैं।
उसमें है वीडियो मार्केटिंग करके बिजनेस आपका कर सकते हैं। ये आपका रिपोर्ट, आपका रैपो बिल्डिंग आप कर सकते हैं लोगों के साथ, इमोशनल कनेक्शन आप कर सकते हैं। उसमें लीड कैप्चरिंग सिस्टम है, सेल्स फनल है, कंटेंट मार्केटिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है। उसमें बहुत सारी चीज़ें है जो डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं दोस्तों। देन दिस डिजिटल मार्केटिंग इज हैविंग द पावर टू रीच द ग्लोबल लेवल फ्रॉम योर लोकल लेवल। आपका लोकल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जैसे कि एक्सपोर्ट्स है, या फिर इवन नॉट एक्सपोर्ट्स बट इवन योर वेबसाइट्स से भी आप एक्सपोर्ट्स में या बाहर के देशों में आप बिजनेस कर सकते हैं। सो उसमें भी बहुत सारा मतलब कंसेप्ट है अलग अलग, तो उसमें भी हम चर्चा कर सकते हैं। बट ड्यू टू टाइम ऑफ छोटा शॉर्ट टाइम होने के कारण वी आर नॉट एबल टू कवर दिस थिंग्स। सो once again, thank you, friends, for being here, for watching this webinar. And अभी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो एक सिर्फ एक 5 मिनट के अंदर we will just wrap up. I will just check how many responses have been there. I think 114. Okay. So what we'll do, Mangesh, or who is there? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे? Yes, अभी sir. Yes. आंसर सेटिंग करेंगे क्या? अभी टाइम का भी बहुत हो चुका टाइम। Sir, I think हाँ, yeah, Yes, sir. some of the participants have some questions. yeah. Kailas Kamble, sir. हाँ, Hello. विचारू शकतात ते विचारतात. हाँ, बोला कैलास. Kamble, sir, you can unmute yourself and ask your question. ओके. मनमत दावणगावे सर, पहिल्यांदा तुमचं खूप खूप अभिनंदन की नॅशनल लेवलला तुम्ही हे जे स्टार्टअप आहे ते तुमचं कृषी मंत्रालयाने किंवा भारत हो. सरकारने तुम्हाला अप्रिशिएट केलं हो हो, येस. आणि तुम्हाला या स्टार्टअप मध्ये देशाला आणि तरुणांना गाईड करण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्रातल्या ह्या तरुणांना तुमच्या ह्या गाईडन्सची नितांत गरज आहे. मी आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये Thank मेसेज you, sir. टाकलेला आहे की केंद्र शासनानं ठरवलं की एवढे कोटी रोजगार देतो. रोजगार येतील कुठून? आता जे तुम्ही प्रेझेंटेशन दिलं फक्त त्याच्यामधूनच रोजगार येऊ शकतात. Thank you, sir. त्याच्यामधूनच बिझनेस निर्माण होऊ शकतात. आणि कदाचित पंतप्रधानांना हे अपेक्षित असेल, तर माझी विनंती राहील तुम्हाला की तुम्ही कृषी मंत्रालय भारत सरकार आणि कृषी मंत्रालय महाराष्ट्र शासन यांच्याशी तुम्ही हे प्रेझेंटेशन घेऊन तुम्ही अप्रोच व्हावं. कारण ह्याच प्रेझेंटेशनवर बिईंग अन ऍग्रीकल्चर प्रोसेस इंजिनियर मी माझ्या विद्यार्थी दशेपासून मी हे काम करतोच आहे. विद्यार्थ्यांना माझ्या जे काही आता माझे विद्यार्थी ऐकतात त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी ह्याच गोष्टीचं ट्रेनिंग देतोय. तुम्ही याला Yes. ऍडव्हान्स रूप आता स्टार्टअपच्या माध्यमातून, डिजिटलच्या माध्यमातून बिझनेस कसा उभे करावा आणि गुगलचा वापर करून बिझनेस कसे उभे करू शकतो. आपल्याजवळ काही इन्फ्रास्ट्रक्चर न उभा करता निवळ ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुम्ही कंपन्या रजिस्टर करून याचा माल त्याला विकण्याची सोय तुम्हाला मिळते आणि कमिशन तुमच्या खात्यात जमा होतं. Yes. द एक्सलंट प्रेझेंटेशन यू हॅव गिव्हन सर. तर हे प्रेझेंटेशन मराठीमध्ये गावागावातल्या तरुणांपर्यंत, आर्ट कॉमर्स सायन्सच्या पोरांपर्यंत हे पोचावं आणि महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थानं स्वराज्य, शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा अर्थ हाच होता सर. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ह्याच अर्थ होता खूप मस्त सर. की माझी माणसं, माझी जमीन, खरं आहे, खरं. येस. पीक. येस सर. थँक्यू कैलास कांबळे सर. खूप इन्स्पिरेशनल होतंय आणि सर आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू गावागावात तरुणांपर्यंत हे प्रेझेंटेशन आणि मनमत सरांचे विचार पोहोचवण्याचा. थँक्यू. थँक्यू कैलास सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नाही आहेत सर आपल्याला. आय Okay. थिंक. Sir, there is one hand raised by Bharat Malani. हा. प्लीज Yeah. अनम्यूट. Please take the. Hello. भरत मालानी. हाँ. Yes. Thank you, sir, for giving information. Yes. Welcome भरत जी. सर मुझे बताइए कि अगर ये इंफॉर्मेशन जैसे आपने बताई है ऑनलाइन हाँ. डिजिटल मार्केटिंग में, ओके. तो सर हम इसके मतलब सीखे कहाँ से? क्या बोल रहे सर?
मतलब सपोज मैंने कोई भी एक बिजनेस स्टार्टअप करने का ले लिया ऑनलाइन, हाँ तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही ना। हाँ चाहिए, यस यस चाहिए। तो वो आप सिखाओगे या मुझे अदर्स कहाँ से मिल सकती है जो अच्छी इंफॉर्मेशन है? सर देखिए, इसमें ये है, जैसे मैं बता रहा था आपको, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है सर, लेकिन देखिए आपको एग्जैक्ट आपका क्या बिजनेस करना है, आपको ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि आप कौन से ओके सर। बिजनेस में इंटरेस्ट हो स्पेशली। कि जैसे कुछ लोगों को लगता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जाए, कुछ लोगों को लगता है एग्रीकल्चर इनपुट्स में जाए, कुछ लोगों को लगता है भाई कुछ अलग बिजनेस करे, बराबर, क्योंकि हर एक का कंडीशन अलग होता है, हर एक का इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, हर एक का अलग होता है। सो आई मीन मुझे ये लगता है कि भाई पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, मतलब अवेलेबल रिसोर्सेस जैसे गूगल है, और नहीं भी है तो उसके जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के भी यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आप एक बार सर डिसाइड करिए, एंड देन यू कैन अप्रोच अस, इवन यू कैन अप्रोच एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड वी कैन गाइड ऑफ कोर्स। तो अगर पर्सनली आपको कुछ Sure. ये चाहिए तो जस्ट वी कैन, देयर इज ओंकार एंड ऑल young people are there, and I am also there of course Sure, sir. Sure. to help you. Sure, thanks. थैंक यू सर। Yes, if anybody is there, Pradeep Agrotech Private Limited, raise the hands. Yes, Pradeep. हॅलो सर, आपली पीपीटी मिळेल का? पीपीटी तुम्हाला देतो मी, तुम्हाला ह्याच्यावर पण मिळेल बघा. ऍक्च्युली ती पीपीटी नव्हती, त्याला ते YouTube सर, मिळेल ना, YouTube लाईव्ह आहे. युट्यूबला आहे ना, युट्यूबला तुमच्याकडे आहे. पूर्ण सेशन आहे YouTubeला. तुम्ही YouTubeला नंतर पण हे सेशन पाहू शकता. तुम्हाला देऊ पण शकतो मी, एक तुम्हाला रिसोर्स देणार आहे, जे शेवटी राहतील ना त्यांना एक मी रिसोर्स, मी लिंक देणार आहे. एक मिनिट तुम्हाला जातो, मी शेअर करतो ती लिंक. सगळेजण आहेतच तर मी शेअर करतो. गिफ्ट पूछ रहे चैट बॉक्स में सब गिफ्ट के लिए पूछ रहे. हाँ, yes, 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 I am giving that. Sure, sure. Sorry for that. I am just. Sir, there is also another hand raised by Prashant Busar. Please Yes. unmute yourself, Prashant. You can ask your question, please. Hello. सर चैट बॉक्स में डाला है उन्होंने क्वेश्चन. हाँ, Okay. बाकी- Okay. एक मिनट, मैं जरा शेयर कर देती लिंक. एक मिनट, लिंक है ना. ही एक लिंक आहे, ही खालची लिंक. तर ही लिंक क्लिक करून बघा ना. ती रिसोर्स आहे, तो जो गिफ्ट तुम्हाला म्हटली होती 8 पेजेस एक लिंक आहे, तर ती डाउनलोड करून घेऊ शकता तुम्ही. किंवा ती सेव्ह करू शकता तुमच्या गुगल ड्राईव्हला. डाउनलोड होत असेल तर यू कॅन जस्ट चेक. एरर तर येत नाही ना, हे मला सांगा प्लीज. क्वेश्चन काय विचारला तुम्ही, म्हणलात तुम्ही? हा, MBA का? असं का? मला दिसत नाही. लिंक पाठवली ना, दीपक जी लिंक पाठवली बघा, ही लिंक आहे. हाँ, सर MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट है? अकॉर्डिंग यू शुड आई टेक एडमिशन फॉर दिस कोर्स? यही क्वेश्चन है ना, प्रशांत भूसार. सर प्रशांत जी, इसमें क्या है, देखिए MBA इन एग्री बिजनेस में किसी भी MBA इन एग्री बिजनेस इज गुड ऑफ कोर्स, बट मैं एक मतलब चीज यहाँ मतलब ये करना चाहता हूँ कि सी देर इज अ theoretical knowledge everywhere, even not in India, even in foreign countries even also there is a this thing. क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है कि वी आर नॉट मेकिंग, मतलब
बिजनेस अगर करना है तो हमको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में जाओ सर आप, स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ फ्रॉम जीरो। आपको जीरो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और उसमें आपका एक्सपीरियंस लेके उसमें जाना पड़ता है। नो, ऑफ कोर्स योर एजुकेशन इज हेल्पिंग आउट देयर समथिंग, बट इफ यू थिंक, इफ यू आर गोइंग फॉर एन गुड जॉब और उसके लिए, तो ऑफ कोर्स एग्री बिजनेस एमबीए इज बेस्ट। आज की तारीख में तो वो बेस्ट ही है, क्योंकि शुरू में हमारे तारीख में जब हम पढ़ रहे तो दैट टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल। एग्री एग्री बिजनेस में ऑप्शन ही नहीं था मेरे टाइम में, मतलब 2005 के। वो तो दैट हैज बीन आई थिंक स्टार्ट हो गया उसके बाद में, 2005 के बाद। सो यू कैन गो फॉर दिस एग्री बिजनेस एमबीए, दैट इज एन गुड ऑप्शन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अच्छे, जैसे पूना में है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है। यस, यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन जी। For the business purpose, it's compulsory you do a master degree like MBA और MTech? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। MBA के बिजनेस करने के लिए तो आपको ऐसी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो कोई भी बिजनेस कर सकता है उसमें। नो, इवन नॉन एग्रीकल्चर भी बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, उसमें तो दैट इज नॉट नेसेसरी। तो बिजनेस के लिए सिर्फ हमको चाहिए कि भाई, वही मैं मतलब वही ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एक ही मतलब उसमें, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक ही मेरा टारगेट है कि लोगों को ना, देखिए इंफॉर्मेशन तो बहुत हो गई है लोगों के पास। मैं तो बोलता हूँ अभी वी आर एक्चुअली इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। हमारे यहाँ तो व्हाट्सएप है, बहुत सारी लोग बहुत कुछ करते हैं, बट मुझे अभी आजकल ना फोकस एक ही चीज पे करो आप। जो कुछ मैं जैसे बोलता हूँ ना, फॉलो योर हार्ट, एंड जो कुछ आपको दिल में है, दिमाग में है, जो अच्छा कर सकते हैं, वो क्यों उसके ऊपर फोकस करो, वही करो। एंड जैसे बोलते हैं ना, अगर हम वेल बोलते हैं, विहीर विहीर वेल अगर हमने मतलब खोदा, बराबर, तो उसमें खोदा वेल, लेकिन एक ही खोदा तो उसको डीप गए तो पानी लगता है। नहीं तो हम ऐसा किया, ये वेल खोदा, बस 5 फुट नीचे गए, 10 फुट नीचे गए, अरे पानी नहीं लगा यार, इसमें पैसे क्यों नहीं आ रहे मेरे बिजनेस में। देन नहीं यार, ये नहीं अच्छा बिजनेस, इसमें ट्राई करेंगे, चलो। देन अगेन दूसरा वेल ढूंढा, उसको खोदा खोदा, 10-15 फुट गया, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। सी आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फेलो। मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी बिजनेस में, कोई भी आप रिसर्च करो जाके गूगल पे, कौन से भी बिजनेस में अगर जाना है तो यू हैव टू जस्ट फर्स्ट, यू शुड बी क्लियर, वेरी गुड। आपके दिमाग में जिसमें ये चाहिए कि बस मुझे यही करना है, और उसी में आप डीप जाओ, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आपको, क्योंकि कैसा है, एवरी बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन, बोलते हैं ना, उसका इनिशियल पीरियड होता है। वो इनिशियल पीरियड आपको टाइम लेगा ही लेगा, चाहे किसी भी बिजनेस में रहो। उसका ग्रोथ आगे जाके उसका मल्टीपल इफेक्ट आपको दिखेगा। बट इनिशियली जैसे बोलते हैं ना, रॉकेट शुरू उड़ने के पहले क्या होता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का तोड़ने के लिए उसको बहुत एनर्जी लगती है। दैट वे एवरी बिजनेस इज लाइक दैट। सो फर्स्ट जस्ट यू फोकस वट एवर यू वांट टू करना चाहते हैं, वो फोकस करो। एक बार क्लियर हो गया, उसका प्लान बनाओ, और वही चीज करो। छोटी चीज करो, बहुत बड़ा बिजनेस करने की मतलब ये जरूरत नहीं है, बट यू कैन डू दैट। So that way you can just do your business. So I think that have answered your question. So thank you, Yes, Gajanand. thanks a lot, sir. So I think हम सेशन के एंड पे आ गए अब। Yeah, sure. मैं यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को और एक्सपर्ट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर ने आज जो सर आपने बहुत मोटिवेट किया यंग एंटरप्रेन्योर्स को। Thank you. सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स 150 स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली थे लेक्चर में, आपको सुन रहे थे। Thank you. So that was huge number, and they are really staying interactive till the end of the session. Wow. So yeah, it's yeah, that's great to see for us also. And I also thank Kailas Kamble sir. He also spoke very well. Yes, yes. और मैं सर आपने जो आपकी स्टोरी बताई शुरू से, उस स्टोरी से भी आई एम डैम श्योर एवरीवन विल बी इंस्पायर्ड। आपने जो बताया कि कोई भी काम में शर्माना नहीं चाहिए। Yes. कई बार आज यूथ यूथ की ये मेंटेलिटी है कि फार्मिंग में जाएंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी,
मतलब अगर कंप्लीटली फार्मिंग में जाएगी, वो भी मेंटेलिटी आप पूरा हटा के बिजनेस माइंडसेट से एग्रो बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसके प्रति आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो। जैसे सर ने आज इतने सारे स्टार्टअप्स दिखाए हमें, बोहे को पूरा एक नया प्लांट लेके, किसी को पता भी नहीं है हेम्प होता भी है, कैनबिस हेम्प जिसको टैबू बोला जाता है, उस प्लांट पे लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में इतने स्टार्टअप्स है। यस, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन सर। थैंक यू। ये सर बोलिए। नहीं बहुत सर ही बोलिए। बहुत ही मतलब वही बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो मतलब मैं क्या लगता है, मैं भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ ना, तो यार मुझे भी रियली फील होता है, मतलब ये जो है ना, ये आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट ओनली, एंड इससे इससे ये चीज यस आती है। सर, या तो यार ऐसे लगता है यार हमने तो किया, चलो अभी अभी हुआ, लेकिन अभी जो आप आ रहे वो तो गलती मत करो, बट दैट इज एन वेरी मतलब राइट। ये बहुत बहुत सही है सर। सर हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, हम रीच आउट हो रहे हैं लोगों से, और हम मतलब इट्स आवर प्लेजर टू अनाउंस दैट वी आर आल्सो वर्किंग इन आवर सेपरेट एंटिटी नेम्ड एज एग्रीफॉक्स फाउंडेशन। वी विल बी लॉन्चिंग सर्टेन प्रोग्राम्स इन दैट। तो उसी में भी हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए जो एफपीओ फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो वो भी काम सर हम कर रहे हैं। कामरे सर बोलना चाहते यस। हैं। हाँ, कामरे सर, यू कैन स्पीक कामरे सर। सर नेटवर्क इश्यू है उनका आई थिंक। हाँ नेटवर्क। ओके। ओके, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, Yes. और होस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। Yes, थैंक yes, यू sir, एवरीवन। definitely. Thank you so much, sir. यस। Thanks.